Good evening, everyone who are joining in. I hope you all are doing fine. We are finally here for day 3 of World Photography Festival. We are waiting for our moderator to show his face because he seems a bit reluctant to do so at the moment. Uh, Good evening, Swapnil, good evening, Lupamudra, good evening, Indrakshi. Welcome all of you. Before we start off with today's program, I'd like to take a few minutes to bring to your notice certain pointers that we would like to emphasize on. The first being the fact about the feedback link. I hope you all know that we are making the feedback link visible through the chat option on your screen. And we are doing it since yesterday's program. So if you have a feedback even from the day 1 of the event or day 2 or about today's event, please feel free to give us your feedback, because your feedback really helps us improve and improvise and makes us better or worse depending on your feedback, right? So we really look forward to that. And we will make it visible for all of you and available for all of you, the link, in a short while. If there are any glitches with the feedback link, please do bear with us. The only glitch I feel is that the contact details and the email ID is an issue, where during the email ID section also, it asks for your contact details. So we would like to request you earnestly, extremely sorry for that inconvenience, but please do enter your phone number twice, both during the email section of the form as well as the contact details, so that you are able to submit the feedback form. Apart from the feedback form, yesterday we had the International Photography Day. And this whole event has been curated to be able to celebrate Photography Day, right? So since yesterday was Photography Day, today we are here to think of dealing with the post-hangover depression, right? Because every celebration, when it goes by, we are left depressed. So that is why this 3-day affair, so that, we do not get the chance or the slightest chance to feel depressed about having such a magnanimous event, right? And that is why today we have with us Lupamudra ma'am, who is going to make it possible for all of us to travel while stuck at quarantine. I think that is what you legit call FOMO, right? So we are going to emphasize on the FOMO for today, but with beautiful photography speaking for itself, so that we can travel the world with those photographs while being stuck behind the doors, and makes us more hopeful about the future, that things keep getting better and we get back to our lives and we never dare to take it granted ever again. So that's the whole purpose of today, to make travel possible, to make memories come alive, to make hope ignite again, right? So on that note, we start off with today's session. Now, before we start off any session, it's always important to get your history, facts, and figures right. I mean, if you do not know about the significance of an event and you celebrate it, nothing worse than that. So before we kickstart celebration, we need to know the significance behind it. And exactly to know the significance behind it, it is important to know what exactly World Photography Day is all about. Well, World Photography Day has its origin from the invention of the daguerreotype, a photographic process which was developed by Frenchman Louis Daguerre and Joseph Niepce in 1837. On January 9, 1839, the French Academy of Sciences announced the daguerreotype process. And on August 19th, the French government purchased the patent and announced the invention as a gift, which was free to the world without any copyright. And since then, yesterday, August 19th, has been a celebratory affair for photographers and photography enthusiasts all over the world. World Photography Day is celebrated so that people around the world can communicate their feelings and express themselves through the art of photography. The whole idea is to hold discussions like this webinar, to encourage people like you participants who want to pursue photography as a hobby or a career. But at the same time, this day is also about paying tribute to the pioneers who have inspired others to take up this skill, and they need to be remembered. So this entire event that we have today is dedicated to the legendary photographers of Bengal.
Photographers like Sukumar Rai, Satyajit Ray, Benu Sen, Sunil Jana, Shubroto Mitro, Nimai Ghosh, Tarapada Banerjee, Vivek Das, Shushanta Banerjee, and Sunil Dutt. We start with Sukumar Rai. Sukumar Rai was a Bengali writer and poet from the Indian subcontinent. He is remembered mainly for his writings for the children. Son of children's story writer Upendra Kishore Rai and father of Indian filmmaker Satyajit Ray, he was trained in photography and printing technology in England at the School of Photo Engraving and Lithography, London, and he was a pioneer of photography and lithography in India. Next, we have Satyajit Ray, an Indian Oscar-winning film director, writer, and illustrator. One of the greatest filmmakers of the 20th century, he started his career as a commercial artist and he was drawn into independent filmmaking. His passion towards still photography made him the maestro of movie making. Next, we have Benu Sen. Benu Sen was the Secretary General of the Federation of Indian Photography, FIP, and President of the Photographic Association of Damdam, PAD. He contributed many photographic works both in the field of social and cultural anthropology and museum-related photography. His passion was to guide the upcoming photographers in the profession, and during his lifespan, he made a pretty number of students dazzled in the arena of photography. Next up, we have Sunil Jana, a well-known Indian photojournalist and documentary photographer who worked in India in the 1940s. Sunil Jana is internationally acclaimed for documenting India's independence movement, its peasant and labor movements, famines and riots, rural and tribal life, as well as the years of rapid urbanization and industrialization. Noted for the beauty and technical quality of his compositions, Sunil Jana's photographs are significant in the historical content as well as the emotional connect. Next up, we have Shubroto Mitra, a renowned still photographer turned cinematographer. At the age of just 21, Mitra, who had never before operated a motion picture camera, began his career as a cinematographer with Satyajit Ray. He was acclaimed for his work in the Opu trilogy and is often considered one of the greatest of Indian cinematographers, and rightfully so. Next up, we have Nimai Ghosh, a noted Indian photographer, most well known for working with Satyajit Ray as a still photographer for over 2 decades, starting with Gupigain Bhagabain till Ray's last film, Agantuk. He was a jury member at the 2007 National Film Awards and was awarded the Padma Shri by Government of India in 2010. Next, we have Tarapada Banerjee, one of the famous and highly respected press photographers of India. He was associated with ABP Group for a very long period of his professional life. He was extremely famous for his candid shots and has done wonderful documentary photography on Bangladesh war and Satyajit Ray. Next up, we have Vivek Das, one of the finest industrial and advertising photographers of India. His craft makes lifeless products vivacious. He has shot for many well-known Indian and international clients and has received many prestigious awards. We had the honor here to have him as our guest yesterday. Next up, we have Shushanta Banerjee, a famous sound engineer in HMV, the gramophone company. He had the opportunity to work with many famous singers, music directors, and filmmakers of our country. He is also a very well-renowned photo artist, not just in India, but throughout the world. He has, to his credit, more than 400 acceptances in different international salons and exhibitions spread over various countries in different continents.
He has bagged many medals and awards and a number of reproductions in salon catalogs. He is also having many international fellowship in photography. Next up, we have Sunil Dutt, a renowned Indian photographer and photojournalist. He is known as the photo chronicler of Mother Teresa's life and has worked for it for more than 30 years until the unfortunate demise in 1997. He is also known as the chronicler of Calcutta and its many moods for his vignettes of life in Kolkata. His photographs have been published in many newspapers, magazines, and journals, and he has received many national and international awards. Lastly, on this entire eve of Post-World Photography Day, we would like to take a minute to thank these legends for their unparalleled contribution to the field and for inspiring all of us, people like you and me, to pick up our cameras and to chase our dreams, all through the words of photography. After that beautiful dedication to some beautiful legendary photographers, it is important for us to take a few minutes to bring on screen our guest for today. We have with us Ms. Lopamudra Talukdar. And today's entire theme is about street and documentary photography and travel photography all combined together. Lopamudra, known as Lopa in the close group, is a documentary and street photographer of India. She's an educator and world traveler. She likes to think of herself as a traveler and student of world culture first before being called a photographer. Whether it's understanding the vanishing cultures of the world, documenting nomadic tribes and their lifestyle, chronicling the ancient rituals of religion and faith, or simply capturing candid split-second moments on the streets. It is the human condition and our instinctive ability to visually tell a story that stands out as a pervasive theme. Lopa's recent projects include chasing the sub-zero winter lifestyle of the Changpa nomads of Ladakh, home to the famous Pashmina wool sheep, documenting disappearing traditions and art forms of indigenous cultures in her native India, portraying the realities of different LGBT communities around the globe, and embarking on a long-term project to capture the once romanticized lifestyle of cowboys in different parts of the world, amongst others. Lopamudra has led workshops and mentored participants for Canon India and is a Fujifilm ex-mentor. Her work has been widely exhibited and published all over the world. And we here, as a part of the NSHM, are extremely honored to have her here for our session and for the third day event of the webinar series. We also have with us Deepro Bishwas, who is going to be the moderator of today. And we are thrilled to start with today's session. Yes, Deepro, you are audible. Oh, okay. Okay. So before we start off with today's session, I think all the participants here, welcome. It is people like you who make these events a success. So no matter how much thank we give to you all, it would fall short. So thank you for joining with us. To the ones who are sticking by our sides in the last 2 days, thank you so much for your time. And I'm hoping that entire event is worth your time. To the ones who have joined in for the first time today, and to the ones who have been sticking with us, let me give you a small spoiler for today's entire event, and that's it. That is the fact that today's event is going to give you major FOMO. And I cannot help it because I had the pleasure of seeing few of the pictures from early on. And since then, I have been transported to the altogether different world. So I'm not going to take much of your time. And we are going to start with today's session. Over to you, Dipro. Over to you, ma'am. Thank you. Good evening, ma'am. Good evening. First of all, thank you for giving your time to our this webinar on travel photography. So আমরা তো আপনার কাজ এমনি দেখবো, তার আগে কয়েকটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করেন যে মানে আপনার ফটোগ্রাফি স্টার্ট করা কবে এবং কিভাবে, कैसे आपने स्टार्ट किया फोटोग्राफी? मैंने कभी पहले फोटोग्राफी के बारे में सोचा ही नहीं था। मुझे पेंटिंग बहुत अच्छा लगता था बचपन से, तो मैंने मेरा मतलब फादर्स को पूछा था कि पेंटिंग लेके पढ़ाई करूं, तो तब
अलाउड नहीं था घर से। पेंटिंग में क्या है, पेंटर्स को ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता, नौकरी भी में नहीं मिलता, तो फिर ठीक है चलो, मैं जूलॉजी में एमएससी किया था। उसके बाद मैं होम मेकर था 15 इयर्स। लेकिन हम लोग ट्रैवल करते थे बचपन से, ट्रैवलर वर्ल्ड को देखना जो है वो मुझे बहुत हाँ अच्छा लगता था। आफ्टर 40 मेरा हस्बैंड का जो कैमरा था वो मुझे एक बार दे दिया कि आप भी तो थोड़ा फोटो खींच सकते हो, मुझे बताया। लेकिन मुझे फोटो खींचना उतना अच्छा नहीं लगता था, मुझे पोज मारना ज्यादा अच्छा लगता था ऑलवेज। उसको मना नहीं, मुझे फोटो नहीं खींच, आप मेरा फोटो खींचो, मैं जगह जगह में जाके पोज दे दूंगी। हाँ तो फिर ठीक दे दिया। फिर कुछ दोस्त था, उस टाइम मैंने फेसबुक में गेम खेलती थी। फेसबुक अकाउंट जो था उसमें पता समझ में नहीं आता था फेसबुक कैसे हैंडल करे। 2010 अक्टूबर, तो मेरा अकाउंट भी उस टाइम में था, तो फर्स्ट मेरा भी उस टाइम में मिला। फिर उसके बाद मैंने गया था घूमने, तो कुछ फोटोग्राफ्स मैंने लिया। मुझे पोर्ट्रेट अच्छा लगता था, लेकिन मुझे कैमरा को स्विच दबाने उसमें बहुत सारे पार्ट भी, तो जो भी है कुछ भी फोटो, उससे पहले बहुत ज्यादा फोटोग्राफ था। जो मेरा इच्छा है, मुझे जो अच्छा लगा उस टाइप का फोटो मैं बना के लेके आया था, फेसबुक में शेयर किया था। इतने सारे लोग मुझे मतलब अप्रिशिएट किया था मेरा वर्क, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं चालू हो गई, ठीक है चलो इसको सीखते हैं। तो उस टाइम हाँ कोई मुझे सिखाने के लिए, मेरा हस्बैंड को भी टाइम नहीं था। खुद कलकत्ता में बहुत कुछ ओकेशंस होते, मैं जाते जाते मैं कोशिश करके प्रैक्टिस करके सीख लिया खुद से। फिर उसके बाद नेशनल जियोग्राफी ट्रैवलर से, फेसबुक से, मैं किसी को कभी पूछा नहीं काम के लिए। हाँ बहुत सारे काम आते लग गया मैं उससे हाँ पहले। इनमें जब मेरा नेशनल जियोग्राफी ट्रैवलर से काम आया था, तो एक असाइनमेंट था, तो उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सीरियसली ले लेते हैं फोटोग्राफी का। आपका आपको इंस्पिरेशन से फोटोग्राफी में, मतलब क्या फेवरेट फोटोग्राफर्स और वर्कशॉप? मैं समझ में नहीं आया, फिर एक बार पूछो मुझे। हाँ, बोल रहा हूँ कि मैम आपका कोई इंस्पिरेशन है फोटोग्राफी में? फोटोग्राफी में दैट टाइम तो मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं था। फोटोग्राफ मुझे पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन हाँ बचपन में मेरे पिता को देखा था, वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर था। लेकिन हम लोग जब छोटे थे तभी वो बंद कर दिया था। लेकिन मैंने देखा था बहुत सारे फोटोग्राफ्स उनका था उस टाइम। वो कैलेंडर भी बने हुए थे, लेकिन बहुत सारे बुक्स देखने का मतलब मेरा सौभाग्य हुआ था बचपन में। हाँ तो उस टाइप का मेरा, जैसा कि लाइफ, जब हम लोग छोटे थे तब तो इंटरनेट नहीं था ना, तो उस टाइम मेरा दूसरे टाइप का मैगजीन देख के हम लोग बड़े हुए, तो वही इंस्पिरेशन था मेरा फोटोग्राफी का। आप आपका अगर कोई काम देख सकते हैं हमको? ठीक है, मैंने हाँ, पहले ma'am, and the pro, before we start the Sure. screen share and we start showing pictures, can we all please switch off the video option so that Yes, the sure. audio is clearer? मैंने क्यूबा का कुछ फोटो दिखाना चाहती हूँ पहले। हाँ आप मुझे बताना कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ हाँ एकदम क्लियर ठीक मैम। है ना? हाँ हाँ हाँ। तो मैम आप चूज कैसे करते हैं कि मुझे इस मतलब इस देश में जाना है, इस देश का फोटो खींचना है? कोई पार्टिकुलर रीजन है क्या आपका इसके पीछे? देखो पहले ये जो क्यूबा है, क्यूबा में बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। तो हाँ मैं वर्ल्ड ट्रैवलर हूँ, मुझे ये दुनिया देखना है बचपन से। ऐसा मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, दुनिया देखना लोगों से। मतलब वो कभी कभी लोग मुझे बताते हैं कि यार इसके लिए पैसा लगे, कभी इतना भी नहीं कि हम लोग मतलब पैसा तो लगते हैं, लेकिन वो मतलब उसको अरेंज करना उतना भी प्रॉब्लम नहीं होता अगर आपका इच्छा हो तो। हाँ कुछ दोस्त से मुझे क्यूबा के बारे में सुना, पहले बहुत सारे पिक्चर्स भी मैंने देखा था, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं।
हाँ, तो क्यूबा से हमारा जो देश का बहुत सारे सिमिलैरिटीज है। लोग बहुत अच्छा, मतलब उसको देखने में अलग हो सकता है, लेकिन सिमिलैरिटीज बहुत सारे हैं उन लोगों का व्यवहार का। जो हम लोग हाँ, जैसे कि वेलकमिंग नेचर है हम लोगों का, तो वहाँ हाँ, का लोगों भी ऐसा ही होता है, बहुत वेलकमिंग नेचर। यहाँ का कुछ फोटोज आप देख सकते हो वहाँ लोगों का। श्योर श्योर। ट्रैवल फोटो में मुझे बहुत लोग से इंटरेक्ट करने का अच्छा लगता है, तो उन जगह को हाँ, पोर्ट्रेट भी मैं एनवायरनमेंट टाइप का लेती हूँ, कहाँ से है, कौन जगह से वो है, तो वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। मतलब आप सिर्फ ट्रैवल पिक्चर्स ही नहीं, ट्रैवल नहीं क्लिक पिक्चर्स ही करते? है। देखो, ट्रैवल पिक्चर्स जो है ये जनरल बहुत बड़े हैं। इसमें हाँ, लैंडस्केप होता है, इसमें ट्रैवल के लिए पीपल फोटोग्राफी, स्ट्रीट फोटोग्राफी, फूड, फैशन, एवरीथिंग। ट्रैवल हाँ, फोटोग्राफी जो है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, लेकिन कोई एक आदमी सब में मतलब एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। तो जैसे कि हाँ, मुझे बहुत सारे फोटोग्राफ्स लेने अच्छा लगता है, लेकिन मैं पीपल में ज्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ, मैं कनेक्ट ज्यादा कर सकती हूँ पीपल फोटोग्राफी में। तो स्ट्रीट मत- डॉक्यूमेंटेशन मुझे अच्छा लगता है, वहाँ का जो लाइफ है, लाइफस्टाइल है, मुझे अच्छा हाँ, लगता है। तो इस पिक्चर से आपका जो प्लेस है वो डिफाइन हो रहा है, वो देश के हाँ, लोग, वहाँ का वहाँ का लोग जो कैसे है। अगर आप इकोनॉमिकल जाने को, बैकग्राउंड जो है हाँ, आप अगर कल्चर। जाने का इच्छा होगा तो आपको समझ में हाँ, आ जाएगा वहाँ का रास्ते कैसे है, लोगों का ड्रेस कैसा है, लोग कैसे है। हाँ, इसका देखो आर्किटेक्चर कैसा है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। क्यूबा का आर्किटेक्चर, वहाँ का लोग, स्पेनिश इन्फ्लुएंस बहुत सारे हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। राइट। मैम, ट्रैवल फोटोग्राफी में ऐसा कोई बात होता है कि एक कॉम्बिनेशन रखना चाहिए कि एक प्लेस आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो, वहाँ के ट्रैवल का फोटोज क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ का मतलब एक कॉम्बिनेशन की पीछे फोटोग्राफ भी हो सकता है, अनकॉमन फोटोग्राफ भी हो सकता है? एकदम एकदम सही। अगर आप ट्रैवल फोटो कोई जगह का करो तो ये नहीं, लोग पूछते हैं कि क्लीशे फोटो नहीं लेना चाहिए। तो हाँ, फर्स्ट थिंग है, आप क्यों फोटो ले रहे हो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट में हो तो प्रोजेक्ट का हिसाब से आप फोटो लो। अगर आप खुद हाँ, के लिए ले रहे हो तो आप क्लिशे भी लो, दूसरा फोटो भी लो। क्योंकि कभी कभी ट्रैवल फोटोग्राफ्स आपको मैगजीन में सबमिट करो, तब कभी कभी जैसे कि आप आगरा में जाओ, तो आगरा हाँ, में जाके अगर आप दूसरे क्लिशे, तो ताजमहल का फोटो होता है, अगर वो आप नहीं लोगे, दूसरे सब फोटो खींच के आ जाएंगे, कोई मैगजीन में सबमिट करेंगे, तो मैगजीन वाले आपसे पूछेंगे वो ताजमहल का फोटो आपके पास है, तब आप क्या करोगे। तो राइट। मुझे लगता है सब कुछ आपको लेना चाहिए, क्लिशे बोल के छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छे वाले फोटो, दूसरे टाइप का फोटो भी लेना चाहिए और क्लिशे हाँ, फोटो भी लेना चाहिए, अगर आप मैगजीन और न्यूज़पेपर को भी ट्रैवल फोटोग्राफ का दिखाना चाहते हो तो। जैसे कि इस मैम, फोटो में आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि वॉल पेंटिंग है, तो हाँ, उसमें सही बोल रहे कहाँ है, हैं। इसका ड्रेस कैसे है, आप ये फोटो किस जगह का है, ये मालूम चल जाएगा। ये भी लेना जरूरी है। मैम, आप क्या करते हैं मतलब पिक्चर खींचने वक्त, मतलब अपने अपने आपको आई का मतलब क्या कैच करता है? व्हाट कैचेस योर आई द मोस्ट? मुझे लोकल मतलब देखो, मैं ये बोलना चाहती हूँ मेरा पिक्चर से कि उस जगह, जैसे कि ट्रैवल फोटोग्राफी मतलब क्या होता है कि ट्रैवल फोटोग्राफी मतलब जिस पिक्चर देख के तुरंत उस जगह में जाने का इच्छा होता है। हाँ, तो फिर भी आप अच्छा सुंदर जगह देख के आप जाओ, फिर उसमें जाके देखते हैं कि नहीं, जगह तो उतना सुंदर नहीं है। तो मुझे ये दिखाना है, सिर्फ सुंदरता नहीं, उस जगह का अच्छे बुरा दोनों चीज दिखाना है मुझे। मैं उसी हिसाब से मैं चलती हूँ कोई जगह में देखने में, उसका अच्छे जगह जैसा दिखाती हूँ, कौन कौन जगह अच्छा है, लोग कैसे है, उसका ड्रेस कैसा है, और उसके साथ साथ उसका जो खराबी है वो भी दिखाना चाहती हूँ। क्योंकि जो मेरा पिक्चर देख के उस जगह पर जाने चाहते हैं, तो वो भी राइट। वार्न हो जाए कि हाँ, इस जगह में ये भी अच्छा नहीं है, ये पॉइंट भी हम नोट कर ले। मैम, पार्टिसिपेंट से यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो पिछले हाँ, पिक्चर में कि दिस हाँ, पिक्चर्स। हाँ, दिस में कि आपका इस पिक्चर में टेक्निकल जो चीज है मतलब शटर स्पीड, तो अगर वो आप थोड़ी बता सकते हैं कि क्यों आपने हाँ, ये फोटो इसमें खींचा? मैं स्लो शटर स्पीड यूज किया। देखो, ये हाँ,
तो हर टाइम सेम टाइप का शटर स्पीड से सेम पिक्चर कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑल डिपेंडेंट ऑन द वेदर, उसका उस टाइम कैसा हवा चल रहा था, कैसा उसका मॉइस्चर था। तो उस टाइम में मैं देखती नहीं हूँ कौन, मुझे स्लो करना क्या था, क्योंकि मेरा था फोटो खींच रहा था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे लग रहा था कि सेम टाइप का फोटो हम मुझे नहीं लेना है। तो मैं एक बार उनको देख लिया, तो मैंने सोचा दूसरा फोटो, तो मतलब एक्सपीरियंस में समझ आ गया कि वो कोई कैसा फोटो ले रहा है। तो मैं वो एंगल एंड स्लो शटर स्पीड में फोटो लिया था, तो ये थोड़ा स्टैंड आउट हो गया। तो तो खींचने में जरूर ट्राई करो थोड़ा दूसरा एंगल, दूसरा टाइप का फोटोग्राफ, तो आपका फोटो आपको आगे ले चले। तो ये फोटो तो लोगों का अच्छा लगा बहुत सारा, क्योंकि कॉमन नहीं होना चाहिए आपको फोटो। हाँ राइट। जैसा कि क्यूबा का इस टाइप का था फोटोग्राफ्स। मैम तो क्यूबा में मैम आपको Can we all switch on the camera first? राइट। Yes. Yes, Dipro, you wanted to ask? I had a few queries from the participants. Should I ask them now? Yes, I wanted to ask मैम that मैम क्यूबा में आपको कौन सी चीज सबसे पसंद है, और कोई चैलेंजेस आपने फेस किया हो अगर क्यूबा में? हाँ, चैलेंजेस भी है। तो क्यूबा जो कंट्री है, देखो बहुत सारे लोग अलाउड भी नहीं है वहां पर, तो और इतने दूर का देश है, फिर वहां का एक प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। इवन वाटर, इवन हेलो को ये भी वो लोग समझते नहीं है, क्योंकि पूरा स्पेनिश, जो ये स्पेनिश लैंग्वेज छोड़ के मुझे उन लोगों का कुछ भी समझ में नहीं आता। इंग्लिश एकदम नहीं चलते वहां पर। और प्राइस भी बहुत हाई होता है वहाँ का, मतलब लोकल के लिए नहीं, लेकिन जो टूरिस्ट है उसके लिए, क्योंकि एक कंट्री जो है उसमें 60-70 इयर्स जो है कोई मतलब ट्रेड नहीं हुआ, ट्रेड बंद है। तो वहाँ वो लोग क्या करें, तो टूरिज्म ही एकमात्र उसका जो उपाय है लोगों से करने का। दूसरा चीज है वहाँ का लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही वेलकम, उनका नेचर है। जैसा मैंने यहाँ पर तो पूरा पिक्चर्स नहीं दिखा सके, बहुत सारे, जैसे कि आप लोग यंग हो, आप लोग इतना ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, वो लोग कभी भी मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहूंगी। तो वो आई ओपनिंग कंट्री है वहां पर। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग कैसे होता है, हम लोग एक लड़का लड़की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ओ अगर वो ऐसा कहा करके करेंगे कि बात करेंगे, लोग बोलते हैं अच्छा ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगा। ये नहीं, मतलब वो कभी लड़का और लड़की एक साथ जब काम करते सोचते नहीं जेंडर के बारे में। उन लोग इतना ओपन माइंडेड होता है। आप कभी टैक्सी में चलो तो टैक्सी ड्राइवर को पूछो कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मे बी वो इंजीनियर और डॉक्टर भी हो सकता है। मतलब इनकी एजुकेशन वहां पर फ्री है। फ्री है तो क्या है, मुझे नहीं करना है, ऐसा नहीं, फ्री है वो अभी उसको करना ही पड़ेगा आपको। एजुकेशन, ऑल पीपल आर एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड। वेटर तो देखो तो वो भी डॉक्टर में भी क्यों, बट उनका सैलरी जो होता है मे बी मंथली सैलरी $25, जो मे बी हम लोगों का एक दिन का डिनर में खर्चा हो जाएगा, दोस्त मिलके जो हम लोग करेंगे। तो उससे तो उन लोगों का चलता नहीं है, क्योंकि वो जो राशन सिस्टम भी है, वहाँ का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो उसीलिए वो क्या करते हैं वीकेंड में इस टाइप का काम करते हैं कि थोड़ा गाइड का काम, थोड़ा गाड़ी चला लेते टैक्सी, और दूसरा कुछ कर लेते वेटर, ऐसा कुछ। तो उसका ड्रेस, जैसे कि हम लोग ड्रेस पर जाते हैं, अभी भी हम लोग वेल ड्रेस पीपल को सोचते हैं अच्छा अच्छा ये वेल ड्रेस है, दिखने में सुंदर है तो ये बहुत अच्छा होगा। कभी हम लोग मतलब कोई काले हो, दिखने में अच्छा नहीं हो, तो हम सोचते नहीं कि ये एडुकेटेड है। वहां पर ड्रेस देख के आप सोचेंगे ही नहीं कि वो लोग इतना एडुकेटेड है। मतलब कपड़े उतना अच्छे भी नहीं है, लेकिन बहुत एडुकेटेड, बहुत वेलकमिंग नेचर है लोगों का। बहुत मतलब कम लोग मुझे रिफ्यूज किया, लेकिन स्पेनिश लैंग्वेज के लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन लोकल गाइड वहां पर लेने था। तो मुझे फिर जाना है, एक जो कंट्री है वो मुझे बार बार, क्योंकि वो मैं इतना रिलेट कर सकती हूँ हमारा कंट्री से, थोड़ा जैसा कि मेनली बंगाल से, क्योंकि लोग जैसा कि एक कप चाय लेके हम लोग बैठ सकते हैं घंटे, वहां पर लोग भी वैसा ही है। वहां का राम बहुत, यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है, हम लोग जब लिकर लेके बात करते हैं,
बाप रे, लिकर नहीं, मतलब वो खाने से पीने से हम लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वो नहीं, वो लोग वो सोचते नहीं, वेस्टर्न कंट्री में लिकर उसका मतलब डिनर हो, लंच, उसका एक पार्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को रास्ते में देखते हैं कि पी के लोग घूमते हैं, वैसा लोग नहीं होता है। वहाँ का राम बहुत फेमस है। जैसे कि हम लोग चाय लेके बोलते हैं आ जाओ बात करते हैं, वो लोग हाँ। राम ऑफर करते हैं हम लोगों को। जैसे टर्की में भी मैंने देखा वो लोग कॉफी ऑफर करते हैं, जैसे सेम टाइप का कंट्री है इंडिया जैसा। तो मुझे बार बार जाने का इच्छा है इसके लिए। मैम हम लोग को ही बहुत सीखने को हाँ मिला मैम, ऐसा लग रहा है कि हम ही क्यूबा घूम के चले आपके पीछे। हाँ, ये बात तो एकदम बिल्कुल सही एकदम। है। हाँ। मैंने तो पहले ही कहा था मैम कि आपका पिक्चर्स देख के इट इज ऑलमोस्ट लाइक घर पे बैठे हैं और पूरा दुनिया का सैर हो जा हाँ। रहा है। So, ma'am, I have a few queries from the participants. The first query is that, ma'am, how did you get your first work from Nat Geo? Now, right now, you are featured in many magazines, in many channels, but how did you end up getting your first big break, if I would say like that, put it like that? The thing is, आजकल का जो बच्चे हैं क्या करते, कैमरा पकड़ के सोचते हैं काल से कितना इनकम कर सकती हूँ। ये बहुत बात है। जब हम लोग स्कूल पहले जाते हैं, पहले सोचते हैं कि आज हम लोग प्रोफेसर हो जाएंगे, टीचर हो जाएंगे, कल से हम कुछ कमाई करेंगे, ये तो होता नहीं। तो फिर बहुत सारे ऑफर मेरे पास आया था, मैं कभी एग्री नहीं किया। मैं सोचती थी कि मैं उनका काबिल नहीं हूँ, मैंने ऑफर को डिनाई किया। लेकिन सब कुछ मैं फेसबुक से मुझे मिला, पहले जो सोशल मीडिया था, अभी इंस्टाग्राम से मेरा जो भी कुछ मेरा काम देखती। तो इसीलिए मैं सबको बताना चाहती हूँ, पहले आप लोग एक पोर्टफोलियो बनाओ अपने, जहां भी हो, जो भी। जैसा कि ऐसा नहीं है मैं पीपल फोटोग्राफर हूँ, स्ट्रीट फोटोग्राफी में ही आपको करना है, फैशन ही करना है। पहले जैसे हम लोग 10 तक, जब हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में, 10 तक सब लैंग्वेज पढ़ती हूँ हम लोग। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट लेके हमारा जोनर जो है, कोई साइंस में, कोई आर्ट्स, ऐसा हम लोग चेंज करते हैं। सेम फोटोग्राफी में पहले सब कुछ उठाओ, फिर उसके बाद आप देखो कि कौन सा जगह में आप कंफर्टेबल हो, कौन सा जोनर है फोटोग्राफी में। तो उसके बाद आप एक पोर्टफोलियो बनाओ, लोगों से शेयर करो। क्योंकि मैंने कभी आज तक किसी को काम के लिए नहीं बोला, वो तो मना किया, बहुत सारे लोगों को मैंने मना भी किया, कहने मैंने भी सोचती नहीं कि मैं उतना कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं ऑलवेज मेरा बेस देना चाहती हूँ। एक दिन मुझे 2014 में एक मेल आया कि नेट जियो में ऐसा एक मतलब वो स्वीट के ऊपर, बंगाली स्वीट के ऊपर एक राइट अप है, उसके काम आपको असाइनमेंट उन्होंने देना चाहते, आप करना चाहो तो। मैं तो करना चाहूंगी, तो फिर मैंने बताया यस ऑलवेज मैं करना चाहूंगी। तो वो काम भी उन लोगों को बहुत अच्छा लगा था। अभी भी वो, फिर उसके बाद भी 2-3 बार किया, लेकिन मैंने कभी उनसे लिंक करके, जैसे लोग एक बार मिलते ही लिंक करके बहुत बार करना चाहते, मैंने कभी नहीं किया। ठीक है चलो, जब आएगा मैं देख लूंगी उसके बाद, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो मैं उसी हिसाब से मैं फोटोग्राफी करती हूँ। I think लोगों को पता चलना चाहिए about your many endeavors of traveling here and there, and I think that is why we need to move on to our next section, so that people can get an exposure to all the amazing photographs that you have in store for us, and all the amazing memories behind the photographs that you have to share with us, ma'am. So Dipro, shall we? Yes, sure. Okay. Let us just switch off the camera. But you want to see the FIFA photos, no? हाँ Yes, ma'am. yes. How can we say no to FIFA photos? Okay. मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपको मतलब ये जाननी आपके लिए कैसा रहा है कि एक ट्रैवल और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, एक स्ट्रीट फोटोग्राफर से स्पोर्ट्स फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरह फीफा कवर करने के लिए। हेलो। हाँ मैम, सुनाई दे रहा है? एक मिनट। आप देख सकते हो क्या मेरा स्क्रीन?
नहीं मैम, छोटा आ रहा है फोटो। हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है मैम। ओके, हाँ हाँ तो मैं, बताइए फिर हाँ क्वेश्चन हाँ जो। तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैम आपका जो जर्नी है, मतलब डॉक्यूमेंट्री, स्ट्रीट फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी से यहाँ पर फीफा कवर करने के बाद स्पोर्ट्स फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स हाँ, जर्नलिज्म, तो ये जैसा जर्नी मैं आपका कैसे रहा? जैसा मैं आपको बताया था, मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया मेरा हाँ लाइफ का। आफ्टर एमएससी मैंने होम मेकर था, मैंने वो भी एंजॉय किया। फिर मेरा बेटा जब थोड़ा बड़ा हो गया, मैंने चालू किया फोटोग्राफी। जब एक बार इंटरेस्ट मिल गया तो मैं करने लगा। तो हाँ मुझे मेरा बेस देना भी था, तो मैंने एक दिन जैसा कि फीफा के पहले हम मुझे न्यूज़पेपर से मिला कि आप जाओगे फीफा कवर करने के लिए, क्योंकि आपका बहुत सारे, वो लोग मेनली मुझे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए नहीं भेज रहा था, वो लोग मुझे भेज रहा था फीफा में हाँ जाते हैं उस टाइम जी। जैसा बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, लैटिन अमेरिका था, लेकिन उस टाइम रशिया नहीं था। जैसा कि हाँ एक वर्ल्ड बन गया था, बहुत सारे लोग, तो वो मूड खींचने के लिए मेरा ऑफिस मुझे बोला था कि आप जाओ फीफा हाँ से भी। जब हम जब से हाँ, तो मेरा पोर्टफोलियो देख के वो लोग हो गया था, तो फिर मुझे फीफा मिल गया था। फिर उसके बाद मैंने स्टडी कर लिया कि जैसे बाहर का मूड क्यों, मुझे स्पोर्ट्स भी लेना है। तो मेरे हाँ पास 20 दिन भी टाइम था, तो मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स फोटोग्राफर से बात किया। फिर मैंने हाँ ये किया कैसे स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं। जैसा कि मैं बहुत मतलब मैं लेट आया, उसीलिए मैं बहुत प्रैक्टिस किया, लोगों से डांट भी हाँ पड़ा मुझे, यहाँ भी आ गए। मतलब जब हम कुछ भी ठीक ठाक कर, बेटा पढ़ाई जो भी है ठीक, मैं पढ़ती थी जब भी, तो मैं बहुत ही मैंने सोच, अगर प्रैक्टिस नहीं करती तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी भी नहीं करती। तो कैमरा को अगर खुद अच्छे तरह से जानो तो आपको सब टाइप का फोटोग्राफी आ सकता है। तो उसमें भी मैं कभी कुछ इसमें, जैसा कि मैं कभी सॉकर देखा ही नहीं था, ये हाँ फर्स्ट था, बताया भी नहीं। फिर उसके बाद इंडिया से आई, अगर मतलब अच्छा नहीं होगा, वो भी खराब, तो वो भी हाँ लेने। तो नेक्स्ट आप देखो फोटोग्राफ तो आपको अच्छा लगे, कुछ है लेकिन पूरा तो मैं दिखा नहीं ठीक। सकती। वहां 1.5 महीना हाँ थी, बहुत। जैसा आपको दिखा सकती हूँ मैं। आपका ये ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा फीफा वर्ल्ड कप? फीफा मतलब का जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा तो था, मतलब काम हाँ करने का एनर्जी बहुत मिल गया था मुझे इस यहाँ आके। लोग इतने, बहुत लोग काम कर रहे, इतना स्पीड था, काम था, वो भी तो था, लेकिन 1.5 महीना ओनली 2 आवर्स में सोने का टाइम मिलता था मुझे। और मेरे कंधे में 20 केजीज का बैग था, बहुत चलना पड़ता था। और हाँ जैसा कि इंडिया नॉन पार्टिसिपेंट कंट्री है, तो राइट। उसी लिए बहुत क्या बताओ, लोग हम लोगों को इतना एनकरेज नहीं करते थे। वो लास्ट में मेरा चांस मिलता था टिकट के लिए, हाँ बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ा। उसीलिए खाना भी ठीक से खाने का टाइम नहीं मिलता था। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा कि मतलब वर्ल्ड कप तो सब लोग देखते जाते हैं, जो लोग मतलब फोटोग्राफी का होता है। एक्सपीरियंस, देखो उस टाइम में जैसे कि मैं तो ऐसा फीफा का फैन नहीं, मतलब सॉकर का फैन उस टाइम नहीं था। मुझे नहीं। क्रिकेट बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये हाँ वर्ल्ड क्लास जो मतलब सॉकर मैंने देखा, इतना स्पीड, इतना, मैं एकदम फैन हो गई हूँ। और उस टाइम जब मैं मतलब फोटोग्राफी एकदम कर रही थी, वर्ल्ड कप को कवर करना, मतलब मेसी जैसे हाँ, जिस टाइम मैं इतने ये बड़े बड़े लोग मतलब को सामने फोटोग्राफ्स से कर रही देखना। थी, मेरा हाँ दिमाग में यही था कि मुझे अच्छे फोटोज लेना है। तो मैं वही कोशिश किया था उस टाइम। और मुझे जैसे कि लोगों से मिलना, लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगते हैं। तो मैंने हाँ वो वहां पर जो मिनी वर्ल्ड देखा, पूरा रात भर रास्ते पे लोग चलना फिरना, उन लोगों से मिलना,
उन लोगों को इंग्लिश तो नहीं आती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश से बात करना, न्यूज भेजना मुझे बहुत अच्छा लगा था। कोई मेमोरेबल इंसिडेंट है मैम आपका फीफा वर्ल्ड कप से? एकदम है तो बहुत ही अगर ये अभी हम लोग को बता सकते हैं। बहुत सारे दोस्त मिला मुझे वहां पर, लेकिन सचमुच टाइम नहीं मिलता था मुझे। ओनली हाँ 2 आवर्स सोने के लिए मिलते थे, फिर बैग, फिर कार्ड फर्ड खाली, तो फिर बहुत चलते थे। मतलब इस फोटोग्राफ्स में हम लोग देख सकते हैं कि एक स्ट्रीट और डॉक्यूमेंट्री का एकदम पूरा इन्फ्लुएंस है, मतलब कैंडिड मोमेंट्स, हाँ, डिसाइसिव मैंने थोड़ा मोमेंट्स। दूसरा टाइप का फोटो लेने की कोशिश किया था वहां पर। हाँ, सब फोटोज में। जैसे कि नॉर्मल स्पोर्ट्स का फोटो देखो, डिफरेंट टाइप का जो एजेंसी होता है न्यूज़पेपर्स को, वो मिलता ही है। हाँ हाँ लेकिन स्पेशली मेरा न्यूज़पेपर जब मुझे भेजा तो मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का कोशिश किया था वहां पर। हाँ आपको पिक्चर दिख रहा है ना, पूरा हाँ मतलब हाँ, ठीक आ क्लियर रहा है ना? क्लियर मैम। इतना स्पीड था, मुझे पहले तो फर्स्ट डे तो इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूं। हाँ चैलेंज भी था, बहुत चैलेंज था। जैसे कि हम लोग एक फील्ड का बाहर में बैठी हूँ, मतलब थोड़ा सा 1 इंच साइड भी नहीं हो सकती हूँ। हमारा क्योंकि पास पास बहुत सारे कैमरामैन भी होता है, थोड़ा खड़े भी हो नहीं सकती। अगर खड़े हो जाऊंगी तो मेरा कार्ड भी वो लोग छीन सकते हैं। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन से गुजारना पड़ा और करना पड़ा उस टाइम। कितने फोटोग्राफर्स रहते हैं मैम उन लोग को ऑफिशियल? ऑफिस बहुत सारे फोटोग्राफर्स रहते हैं, लेकिन क्या है, जो मतलब जो प्लेयर्स ग्राउंड में होता है, दो जो टीम होता है, फर्स्ट हाँ चांस उन दोनों को मिलता है। फिर उसके बाद फील्ड में 42 ऐसा कुछ फोटोग्राफर्स होता है। फिर बाप जो रे मैम। एजेंसी होता है उन लोगों का ना ऑटोमेटिक कैमरा होता है। जो आप लोग एजेंसी का फोटो देखते हैं, तो उसमें हाँ फोटोग्राफर्स का उतना भी कुछ, बहुत सारे कैमरा फील्ड में रहते हैं। हम लोग जैसा कि बहुत कष्ट करके फोटोग्राफ्स लेते हैं, उन लोगों को उतना भी यहाँ पर फील्ड का आसपास में बहुत सारे ऑटोमेटिक कैमरा रहते हैं। हाँ तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर पीछे लोग खड़े हैं। हम लोग अलाउड नहीं है यहाँ पर जाने के लिए, एजेंसी लोगों के लिए। जो मेन मेन अच्छे जगह है, एजेंसी का वो जगह फिक्स कर रहते हैं उन लोगों के लिए। फिर जो टीम है उन दोनों के लिए। फिर उसके बाद जो होम जिसका कंट्री है वो कंट्री के लिए। उसके हाँ बाद यूरोप को लोगों के लिए। हम लोग एकदम लास्ट में हम लोग को चांस मिलता है, जो जगह कोई नहीं लेता है, तब हम लोग ओ का वो वाला सीट मिलता है। मतलब सबसे खराब सीट हम लोगों को मिलता है, कि नॉन पार्टिसिपेंट कंट्री है इसीलिए। ओ मतलब अगर आपका जो गियर रहा है इस फोटोग्राफ्स में, किस कैमरा और किस लेंस, वो आप बता सकते हैं? आप देख सब तो सकते हो पीछे टेलीफोटो में लोग लेंस ही कैसे है पास पास शायद। पास पास बैठे हैं ना, हाँ हाँ एकदम पास। आप थोड़ा हिल भी नहीं सकते हो, थोड़ा सा हिलोगे तो बस आपका कार्ड ले लेंगे वो लोग। पास वाले लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपका कार्ड हाँ वो ले लेंगे। बात है। हम आप यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स आप खींचे हो वहाँ उस इस फोटोग्राफ्स में आप गियर के बारे में कुछ बता सकते हैं कि किस लेंस हाँ, आपने यूज गियर के किया? बारे में क्या बताऊं। मैंने उस टाइम कैनन का गियर यूज किया था, और जो मेरे पास था वही मैंने यूज किया। लेकिन वहां पर कैनन निकन का एक, मतलब वो लोग का खुद का कंपनी का होता है, आप लोग ले सकते हो। लेकिन इतने सारे लाइंस होता है तो हाँ वो पॉसिबल नहीं होता टाइम पे मिलना। और वो अंदर से जो बड़े फोटोग्राफर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स मेनली स्पोर्ट्स से एजेंसी से जाते हैं, उन लोगों का फर्स्ट चांस मिलता है उसमें। one of the participants was asking that मतलब आप क्या Can we लेंस यूज किया हाँ यहाँ? हाँ, can we all first switch on the camera, because I'm pretty sure everyone wants to Right. see ma'am's face and your face as well, Dipro. Right.
Yes, as Dipro was saying, ma'am, a lot of people want to know One, about the lens. yes, you Yes, use Dipro. while taking photographs of FIFA. देखो फील्ड में जाके बहुत सारे लेंस, मैं जैसा कि न्यूज, अगर आप मैगजीन से फोटोग्राफ लेते हो तो उसमें अच्छा वाला लेंस चाहिए, लेकिन मेरे पास जो लेंस था 70, 200 एंड 300 लेंस मेरा खुद का था और एक्सटेंडर भी था, तो मैं उसको यूज किया था। और कभी कभी वहां पर कुछ अच्छे वाले लेंस मिल गया था मुझे, तो मैं वो 200 और 600 लेंस जो है कुछ दिन मिल गया था, मैं वो यूज किया था, क्योंकि मेरा जो काम था बाहर जाके मूड खींच के फिर अंदर आके वो लाइन मेंटेन करके, वो टाइम से मेरा नहीं हो रहा था। मैं आपको पहले ही बताया था कि जैसा कि मेरा चांस बहुत लास्ट में मिलता था, और इंडिया से ओनली 4 जून गए थे, 3 जून का एक्सपीरियंस था, मैं सबसे कम एक्सपीरियंस वाले थे, तो फर्स्ट इंडिया में भी मिलता था, उन तीनों को फर्स्ट मिलता था, उससे बाद मेरी मिलती थी। तो मैं कोशिश, जो मेरा पास लेंस है मैं वही देख के कोशिश किया था करने के लिए। 70 वाइड वाला 1635 मैंने यूज किया जब मैंने सामने बैठी हूँ, चेंज करने के भी टाइम नहीं मिलता था, हम लोग का ट्राइपॉड भी अलाउ नहीं था, ओनली जो मोनोपॉड था वही था, और इतने भारी सब कुछ लेके फील्ड में गया, कैमरा से फोटो उठाते उठाते हम लोग को ट्रांसफर, क्योंकि टाइम जोन जो चेंज है वहां पर, कभी जो रात को मतलब जो गेम चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग का न्यूज़पेपर का पेज छोड़ने का टाइम हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से वो नेट भी नहीं मिल रहा था। कभी कभी होता है कि कैमरा से फोटो मोबाइल में लेके मोबाइल से हम लोग सेंड करते थे, तो मुझे एक आपने देखा स्लो शटर का फोटो, तो मैंने कुछ इस टाइप का ट्राई करने का, लेकिन डर भी लगता था अगर वो ट्राई करो तो गोल मिस हो जाएंगे, तो टाइम में मैम देखना चाहोगे? बेसिक, हाँ मैम, लेकिन उसके पहले मैम आपको बोल दूं मैम, बिकॉज वी आर गेटिंग एटलीस्ट 20-30 क्वेरीज ऑलरेडी, और अगर हम लोग वो सब क्वेरीज को एंटरटेन नहीं करेंगे तो बहुत जन ऑलरेडी गुस्सा होने लग गए हैं कि नहीं, हम उन लोग लोगों को क्वेश्चन बता आंसर। दीजिए कि स्पोर्ट्स का क्लास मैं बाद में ले लूंगी, आज सिर्फ मजा करना है एवं फोटोग्राफ सीखना है। एकदम एकदम अच्छा क्वेरीज है मैम, कुछ कुछ, इट्स नॉट अबाउट स्पोर्ट्स फोटोग्राफी मोस्टली, सिंस मैम यू आर अ ट्रैवलर, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ फोटोग्राफर, you are a traveler. So that I think the first query that people have is, ma'am, when you're traveling all over the world to different places, English is not a language that everybody knows of. Just like you said, ma'am, Cuba, maybe, you know, there was a lot of language issues because they wouldn't want to speak anything else apart from Spanish, right? So how do you cope up with the communication issues, ma'am, the language barrier when you're traveling all over the world? जैसा कि नॉट ओनली क्यूबा, जैसा कि मैं रोमानिया में भी ट्रैवल किया था, वहां पर भी पॉसिबल लोकल लैंग्वेज जो है, आप कितना देर तक गाइड लेके चलोगे, सब टाइम गाइड लेके नहीं, लेकिन जो पहले वाला मतलब प्रिमिटिव लैंग्वेज है, मतलब स्माइल, हाथ हिलाना जो भी है, और मैं इतने सारे लोगों का फोटोग्राफ्स करती हूँ, तो बॉडी लैंग्वेज मेरे पास मतलब बहुत इजी हो गया मेरे लिए। कभी ऐसा भी होता है, मैं जब वापस आ जाती हूँ उनका फोटोग्राफ लेके, मैं भी बात करती हूँ मेरी लैंग्वेज से, जो भी मैं भी बंगाली, कभी कभी बंगाली भी यूज करती हूँ, तो वो लोग अपने भाषा से उसका जो प्रॉब्लम है वो भी बोलना लगते हैं, लेकिन जब वापस आ जाती हूँ लोग रोते भी है। इसे बहुत टाइम मेरे साथ हुआ, लोग जैसे कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होता है फोटोग्राफ्स का, जो मैंने बताया कि वो भी मैं शेयर करती हूँ, वो लोग समझ में आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, तो उसमें मैं मैनेज कर लेती हूँ। और कभी कभी तो गाइड लगता है हम लोग को, इंटरप्रेटर, जैसा कि रशिया में लगा था, सब जगह में कभी कभी, लेकिन रोज तो हम लोग ये स्पेंड नहीं कर सकते इतने सारे पैसे गाइड के पीछे। लेकिन बॉडी लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, लोगों को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करो तो रिस्पेक्ट वापस में आपको ऑलवेज मिलेगा। दूसरा कल्चर को आप रिस्पेक्ट करो, आपको, उसीलिए मैंने बोलती हूँ कभी ट्रैवलर हो जहां भी हो, जाके फोटो खींचना तुरंत शुरू मत करो। ये पहले मैंने भी ये भूल किया था, ये भूल मैंने जब पहले बार मुझे फोटो कैमरा मिला था, मैं भी जाके तुरंत शुरू कर देती थी। लेकिन मेरी एक्सपीरियंस से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि पहले एकदम कैमरा मत निकालो और कैमरा रहने दो, बात करो लोगों से, आप अपने आप को उन जगह में एकदम फिट कर लो पहले, और देख लो पूरा जगह खुद का आंखों से,
तो हाँ। फिर उसके में क्या होता है, अपना जो इनर विजन जो है उससे आप फिर विजुअलाइज कर सकते हो कि ये यहाँ से मैं फोटो लूंगी तो ये अच्छा होगा वो। और फिर क्या होता है, कभी कभी जैसे कि रोमानिया में मैं प्रेयर के अंदर ढुक के घुस के फोटो लेती थी, तो लोग को डिस्टर्ब होना चाहिए लेकिन वो नहीं होते थे। कभी कभी मतलब थोड़ा उससे मतलब आई कांटेक्ट हो जाने से मैं स्माइल देती हूँ। कभी वो लोग जब मैं देखती हूँ कुछ नहीं बोला, किसी का गुस्सा हो तो मैं अवॉइड करती हूँ, वो बॉडी लैंग्वेज हाँ। देख के मालूम हो जाता है। तो मैं आपको फीफा का जो मैंने देखा है फोटोग्राफ्स, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो एनवायरनमेंट बाहर का कैसा था। जरूर Sure, जरूर। sure, ma'am. Will you stop the video again? Yes, let's watch, Okay. stop the video. দেখা যাচ্ছে? हाँ मैम। हाँ हाँ, clear ma'am. तो वहां पर लोग कैसे थे, मैं उनका एक हाँ। एनवायरनमेंट जो है वो दिखाना चाहती हूँ, अभी आप देख सकते हो। मैम आपका जैसा ये फोटोग्राफ्स, हाँ मैम बोलिए। ये एक मेरा सेल्फी भी है, आप देख सकते हो मेरा उनका। तो इस टाइप के एटीट्यूड से इसका मुंह में भी हंसी आ गया मेरा। कभी हाँ। कभी मैं भी इस स्ट्रीट फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी में आपको भी थोड़ा कभी कभी पुलिस जैसा मतलब करना भी चाहिए, जैसा कि सामने वाले लोग आपको डांट ना पाए, तो वो भी हाँ। कभी कभी करना है मुझे। मैम हर वक्त क्या ऐसा होता है कि मतलब जो पीपल का फोटोग्राफ्स लेना चाहते हो वो एग्री करते हैं कि उनके फोटोग्राफ्स देखो आप खींच सकते हो? ज्यादा से ज्यादा लोग एग्री करते हैं। मैंने पहले आपको बताया ना कि पहले एनवायरनमेंट देख लो, लोगों का बॉडी लैंग्वेज देख लो, उससे जब आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करोगे तो आपको पता भी चल जाता है एनवायरनमेंट कैसे है। अगर हाँ। आप देखते हो कि यहाँ पर लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, जैसे मेक्सिको का फोटो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया, जैसे कि अफ्रीका का फोटो, जैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है। अफ्रीका का एक लोग मुझे पूरा कैमरा पकड़ के मतलब फेंक ही दिया था मुझे। सब बहुत सारे इंसिडेंट्स है। तो जैसे कि मुंबई में भी है, मुझे पुलिस लेके जा रहा था कि अभी आपको जेल में डालेंगे, तो लॉकअप में आप रहेंगे, उसके बाद मैंने मेरे बेटा को मणिपाल में दाखिल करा था। बहुत सारे इंसिडेंट्स होता है, तो उसी से मैं जो लिया कि पहले मुझे कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है। उसके बाद जैसे कि ये देखो हैप्पी कपल है, बच्चा को लेके जाता है, जब भी मुझे देख ये भी है मतलब है, तो ये भी चाहिए। आप तो बहुत बहुत देश घूमा आपने, बहुत ट्रैवल फोटोग्राफ्स के लिए। कोई बेसिक स्टाफ है जो एक ट्रैवल फोटोग्राफर को कैरी करना चाहिए आप उनके साथ? देखो मेरे ट्रैवल फोटोग्राफर को मुझे देखो, पहले तो मैं बहुत ट्रैवल फोटोग्राफर का 3 टाइप का लेंस होना जरूरी होता है, जैसे कि वाइड और जूम लेंस तो होना चाहिए। जैसे पहले मैं 1635, 2470 एंड 7200 रखते थे पहले, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि अगर आप बेसिक ट्रैवल करोगे तो इतने सारे लेंस, इतने सारे चीज लेके आप नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको लाइट ट्रैवल करना होगा। तो मैं अभी एक कैमरा, एक लेंस के ऊपर ज्यादा मतलब देती हूँ, ध्यान देती हूँ। तो 24/7 का बेसिक लेंस हो सकता है, ये बहुत अच्छा लेंस है। मतलब वाइड भी हो जाता है थोड़ा, हाँ, टेली सब फोटो कुछ हो भी। जाता है, सब कुछ स्ट्रीट क्लोज सब कुछ हो जाता है। अगर आप कोई स्पेशल कुछ काम के लिए जा रहे हो, असाइनमेंट होगा, तो उसके लिए तो आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा लेंस है। राइट। एक चार्ज में है, जब ब्राजील हार रहा था तो पूरा वहां पर चार्ज में घुसे थे, वो लोग कर रहे थे ब्राजील। ये तीन टाइम, एक उम्र है और एक जन के 2
भाई 14 टाइम कप देखा, पूरा 4 साल ये लोग पैसा इकट्ठे कर, उसके पूरा जो हाथ में लिया वो है, ऐसा वो वर्ल्ड कप देखने को इतना अच्छा लोगों को, जब इंस्टाग्राम आप लोग करोगे तो ये भी देखना पड़ता है स्टोरी क्या है, लोग आते हैं जैसे कि अर्जेंट लोग हैं, जैसे अभी हम मैं वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये इतने अच्छे साइड में गाना भी गा रहा था को एनकरेज करने के, टीम को एनकरेज करने के, जैसा बोला कि लोग इतने लोगों का टीम को सपोर्ट के लिए आया है, प्रेयर कर रहे हैं, ये ह्यूमन नेचर कितना अलग होता है। यहाँ प्रेयर देखो, इस बच्चा को देखो कैसे देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया में गया, मतलब ये पूरा रशिया नहीं था, ये इस टाइम पूरा मिनी वर्ल्ड हो गया था। मेनली लैटिन अमेरिकन पीपल बहुत ज्यादा था। मुझे पूछना नहीं पड़ा, ये मुझे देख के ही पोज दे दिया, मैंने स्माइल दिया तो इन्होंने मुझे पोज दे दिया। और ये न्यूज़पेपर के लिए तो अच्छे होता है। हाँ, मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना एक सॉल्यूशन है कि वो आपको एक्सेप्ट करेगा, आप उसको देखो ये इसमें देखो चैलेंज तो है और ये प्रैक्टिस है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो लोगों से मिलना, आप बार बार निकालो, मतलब आप रोज निकालोगे, रोज बाहर जाओगे, फोटो खींचोगे, आप कंफर्टेबल हो जाओगे। और अभी भी हम लोग के पास ये चैलेंज होता है क्योंकि लोग एक नहीं होता है, डिफरेंट जगह का लोग अलग होता है। सब लोग वेलकमिंग नेचर का होता भी नहीं है, प्रॉब्लम तो होता है। तो उसी टाइम हम लोग सोचते हैं, देखते हैं कैसे हम लोग उसको हैंडल कर सके। देखो कलर भी अलग कर दिया उसने। अगर कोई करना चाहते हो तो मैं भेज दूंगी इस कलर को, आप लोग देख के कलर कर लेना। देखो हस्बैंड वाइफ दोनों ही नेमार का हाँ लगा दिया। उस टाइम रशिया डे भी था, रास्ते में मैं वो भी खींचा था फोटो, मतलब फीफा का फोटोग्राफ छोड़ के रशिया में क्या हो रहा था। तो लोग रास्ते में नाच रहा था, हंस रहा था, जैसे कि रास्ते में लाइट देखो पूरा लाइट भरे हुए है, ड्रेस करके ऐसे घूम रहा था। तो ऐसा क्या लगा आपको कि मतलब वर्ल्ड कप था, सभी वर्ल्ड से लोग आ रहे थे, तो आप जब आप उन लोग के फोटोग्राफ्स खींच रहे थे अलग अलग लोगों के, तो क्या आपको लग रहा था कि एक अलग मतलब अलग अलग कल्चर्स का भी एक टेस्ट आपको मिल रहा है? एकदम एकदम अलग अलग कल्चर का फेस मिल रहा था। कोई कुछ लोग होता था बहुत वेलकमिंग, कुछ लोग होता था कि कैमरा के सामने हाथ दे के नहीं खींचना है फोटोज, ऐसा भी मुझे नेगेटिव भी बहुत सारे मिलते थे। जैसा कि मैंने बोला कि रशिया डे रास्ते में लोग ऐसा नाच रहा था, उस मेरे जैसा कि मैं फोटोग्राफ्स लिखा तो ये इतना कैमरा था। रात को 2 बजे होगा ये था। हर जगह में कुछ ना कुछ हो रहा था, ऐसा ही मुझे दिखाना है कि पूरा जो कंट्री था, पूरा जो सिटी था, पूरा कुछ ना कुछ हो रहा, हर जगह में जहां पर देखो कुछ ना कुछ हो रहा है। मतलब सेलिब्रेशन का एकदम फ्लेवर है वो। कहाँ पर स्टेज लगा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ये रशियन लेडी है, जब इंडियन एम्बेसी से हम लोगों को बुलाया तो रशियन लेडी जो है वो लोग मुझे हम लोगों का इंडियन डांस, वो लोग इंडिया का बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, तो इंडियन डांस क्लासिकल डांस करके दिखाया। तो ये रशिया का, तीनों ही रशिया का है, बहुत अच्छा डांस किया ये बाहर का। आप से देख सकते हो, कभी छुट्टी
मिलता, दोपहर हो कि रात हो, मैच नहीं होता तो बाहर जा आपके फोटोग्राफ्स में यहाँ पर जो एक मतलब डिसाइसिव मोमेंट्स है हाँ। बहुत सारे फोटोग्राफ्स में, तो आप अगर इस टाइप के ऊपर कोई सजेशन देना चाहते हैं कि ये मोमेंट कैसे ले जा देखो सकते ये हैं? मोमेंट फिर मैं वही बताऊंगी कि ये सब मोमेंट लेने के लिए पहले आपको फोटो नहीं खींचना है, जगह को देखना है, अपना आंखें बनाना है। अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है, प्रैक्टिस करने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा किस फोटो कैसे लो, और जो आपका जिसका फोटो आप लेना चाहते हो उसको समझना नहीं चाहिए आप जब फोटो ले रहे हो, तो उसको भी कैसे अवॉइड कर सकते हो वो भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है। ओके मैम, यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन आया था कि जब आप कोई मतलब किसी का भी फोटोग्राफ खींच रहे हो तो आप वो चूज कैसे करते हो कि आप मतलब मुझे इस सब्जेक्ट का ही फोटो खींचना है? हाँ, ये समझ में नहीं आया, लेकिन मैं कोई असाइनमेंट में हूँ तो मुझे पहले ही ये मालूम पड़ जाता है कि मैं कैसे मेरा फोटो स्टोरी बनाऊंगी। और स्ट्रीट में कभी जाऊंगी तो जैसा मैंने बोला कि एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप देखते ही आंखें चला जाता है किस चीज का फोटो लेना है, किसके ऊपर मेरा फोकस रहना है, तो मैं उसके ऊपर ही ध्यान देती हूँ और उसके फोटोग्राफ्स लेती हूँ। लेकिन कभी कोई मना करते हैं तो मैं तुरंत वहां से चले जाती हूँ। लेकिन फिर भी कभी मुझे वही लोगों का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे लेना ही है, असाइनमेंट है, तो मैं फिर भी वापस आती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि वो मुझे मतलब कुछ एक्टिंग वैक्टिंग करके जैसा भी हो वो फोटोग्राफ्स मैं ले लेती हूँ। ये जो हस्बैंड वाइफ, ये जो ओल्ड लेडी एंड मैन है, ये इंडिया से है, बंगाली भी है, ये भी 10 टाइम्स गया हुआ है, पानुदा बोल के, ये उनका मिसेस। ये भी लोगों से 4 साल, जैसे कि 14 टाइम्स दिखाया वो बाहर का था, ये इंडियन है, बंगाली है। ये भी जैसा कि मतलब ड्राई फ्रूट्स लेके निकाल पड़ते हैं लोगों का हेल्प। ये भी वर्ल्ड कप देखने गया, 4 साल से लोग पैसा खर्चते हैं। देखो इंडिया पार्टिसिपेंट नहीं है लेकिन बहुत सारे इंडियंस है ने फ्लैग हिला पर, वो लोग इंडिया का ही फ्लैग हिला रहे हैं किया था। इंडिया से। हाँ, लेकिन वो लोग ड्रीम, उसका मैंने पूछा कि आप लोग क्यों आए, तो उनका फोटो क्यों इंडियन फ्लैग, मतलब हम लोग का ये ड्रीम अभी इधर से ड्रीम से हम लोग आपको बोला इंडियन करते हैं, जैसे कि क्लासिकल डांस चैन लेडी है, ये लोग पहनते हैं, इनको देखो रास्ते में पहन के लोग घूमते। तो देखो इसका जो है ये देखिए कैसा काट कर बनाया, इतने टाइप का लोग होते हैं। बहुत अच्छा है जो आपके फोटोग्राफ्स है, मतलब पूरे अगर रशिया की बात किया जाए तो रशिया को पूरा डिफाइन किया जा सकता है इस फोटोग्राफ से। आई थिंक मैम ये जो सब पिक्चर्स थे जिसको हम लोग बोलते हैं BTS पिक्चर्स, आई थिंक ये तो इवेंट से भी बेटर था, because you know FIFA का pictures जो है we anyways get to see them via newspapers and channels and everything, but ये जो सब pictures है, I think this is what brings out you know the real essence of an event. Anything that goes behind the scenes is what brings out the real essence of an event. So I think ये ज़्यादा enjoyable था even more than the you know FIFA pictures. Okay, before we move further, there are few people who are having an issue with the audio. We are trying to work on it, but unfortunately the audio quality is dependent on the network, and the network is sometimes dependent on the factor that is the weather. And if you can just see, and if you can just look outside your window, you will know exactly why that the audio is not within our control. Sorry for that inconvenience, but do bear with us. It is not us to be blamed when the audio quality is a bit disrupted. It is because of network issues. Exactly. And the network is directly connected to the weather.
So if you have to blame, just open your window, yell at the weather, and come back and see the pictures with a good mood. Because I think, as I always say, when you're seeing photographs, the language is always secondary, the communication is always secondary. The photographs have to speak for themselves always. Right. So they make up for the lack of any sort of talking, right? So, ma'am, before we move on, we have a few questions which I feel is important, because most of the participants that we have, they are students and they're also aspiring photographers. So, ma'am, could you please tell us about how did you turn your passion into profession? It's cliche, but it's one of the most important queries that, you know, aspiring photographers and students have. जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था, मैं जब फर्स्ट फोटोग्राफ्स लिया था फर्स्ट टाइम, तो मेरा फ्रेमिंग लोगों को अच्छा लगा। क्योंकि वो नया था, फ्रेश था, मैंने ज्यादा से ज्यादा फोटोग्राफ्स देखा नहीं था, तो मेरा जो फ्रेमिंग था वो मेरा अपना था। तो लोग तब से मुझे एनकरेज करने लगा, मेरा पिक्चर्स अच्छे, तब से फास्ट कैमरा लेते ही मुझे थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा था। लेकिन मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं रेडी नहीं हूँ कोई काम के लिए। तो फर्स्ट जो बच्चे जिसको फोटोग्राफ करना है, तो उसको मैं ये बताऊंगी कि पहले आप खुद को प्रिपेयर करो। तो मैं भी वैसा ही किया था। और फिर उसके बाद जैसा मैंने बोला, नेशनल ज्योग्राफी का काम करके फिर मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा काम ले लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा मैगजीन में जैसा लोग जैसे कि आते थे, मैं नहीं बोलती थी। लेकिन उसके बाद मेरा जैसा कि मैं होम मेकर हूँ, तो मेरा घर का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी था। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे जिसका मम्मी पापा होम मेकर है तो घर से तुरंत एक दिन खाना पकाते पकाते चलेगी, चलो मैं आज से छुट्टी ले लेती। ऐसा भी नहीं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहते हैं। तो जब मेरा बेटा हॉस्टल चला गया, तो मैं उसके बाद मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ। तो उसके लिए मैंने काम नहीं किया था इतना दिन, घर के ज्यादा टाइम दे रहा था। तो मैं देखा कि ठीक है, तब ये जो फ्री टाइम है तो मैं प्रोफेशनली, क्योंकि मैं ट्रैवल भी करना चाहती हूँ, और तो मैं शुरू कर दिया प्रोफेशनली फोटोग्राफ करना। और उसके लिए पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। प्रोफेशनल मतलब जैसा कि मैं ट्रैवल करती हूँ, ट्रैवल मुझे अच्छा लगता है, तो उसीलिए मैं कभी कभी थोड़ा कर लेती हूँ, कभी मैगजीन में कंट्रीब्यूट कर लेती हूँ। लेकिन मेरा जो बनाया पहले, ये अपने खुद का प्रोफाइल जो है वो पोर्टफोलियो बनाना चाहिए लोगों को। जैसे कि वो देखते हैं लोग, तो उससे मुझे ऑफर लगा। तो अगर आपके पास मतलब प्रॉपर पोर्टफोलियो नहीं होगा, तो लोग कैसे मतलब उसको आपका को देंगे। तो ये आप लोगों को अप्रोच करना होगा, आपको खुद ही काम आ जाएगा आपके पास। So, ma'am, as you said, कि you know, पहले तो सबसे पहले the most important thing is to build a good portfolio. Now, when the aspiring photographers, they're starting off their journey with photography, what are the tips you would suggest to build a good portfolio? मतलब एकदम पहले how do you end up making a impressible, quality and relatable portfolio so that you get noticed somewhere or the other? जो वो भी मैं पहले ही बताया था आपको कि एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए पेशेंस चाहिए। जैसा कि हम लोग स्कूल जाते ही कुछ मतलब एक दिन में तो हम लोग ग्रेजुएट भी नहीं हो जाते हैं, नौकरी भी नहीं मिलता है। उसके लिए हम लोग को 12 साल और 24 साल तक वेट करना पड़ता है। तो ये भी सेम टाइप का चीज है। तो उसीलिए आपको सीखना तो पड़ेगा, कुछ टाइम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपने खुद का फोटो के ऊपर ये भी देखना चाहिए, पहले आप लोगों को जाके दूसरे मास्टर्स का फोटो देखना चाहिए कि क्यों वो लोग मास्टर्स है, क्यों मेरा फोटोग्राफ्स को लोग कमेंट नहीं देता है, मेरा फोटोस लाइक नहीं करते सबको। क्योंकि मैं जब खुद कुछ क्रिएट करूंगी, वो मेरा बच्चे जैसा है, तो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप कुछ फोटो मतलब उठाओगे तो आपको अच्छा लग रहा है, उसीलिए तो आप उठाया ना। तो अपने फोटो सबको प्यारे लगते हैं, लेकिन वो कंपेयर करना चाहिए आपको मास्टर्स को फोटो देख के कि क्यों वो लोग मेरा फोटो अच्छा नहीं लगता, क्यों उनका फोटो। तो देखते देखते क्या होता है, हम लोग को समझ में आ जाता है, नए चीज करने का वो जाता है। मतलब मास्टर्स की काम को देखना, उन लोग का किताब पढ़ना, ये सब एकदम जरूरी है, बहुत जरूरी है।
अच्छे वाला बुक्स देखो, उनका प्रोफाइल में जाओ। अभी तो बहुत सारे नेट में मतलब ऑनलाइन, इंस्टाग्राम हाँ पे बहुत सारे लोगों का आप देख सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, क्वालिटी चीज देखना बहुत जरूरी है। और क्या है, पहले जैसा मैंने बोला कि सब टाइप का फोटोग्राफी में आप ट्राई करो, उसके बाद आप देखो कंफर्टेबल हो कौन सा जोन में, कौन सा फोटोग्राफ दूसरे का मतलब इसमें पैसा मिलता है तो मैं उसको करना चाहिए, दबाव में आके नहीं करना चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें जैसे कि मेरा देखो पैर में बहुत प्रॉब्लम है, मैं कभी भी स्टूडियो फोटोग्राफी फिर भी नहीं कर सकती। मैं इवेंट ही करना है, लोगों से मिलना, जैसे कि होली में बार बार जाओ, प्रॉब्लम हाँ हाइकिंग करो, ट्रेकिंग करो, मुझे कि वो मुझे एनर्जी मिलता है उसमें। मेरा इतना प्रॉब्लम है, डॉक्टर भी मना करते हैं, लेकिन मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एड्रेनालिन जो है हम लोगों का, उसमें मैं जो इंटरेस्ट मुझे मिलता है। तो आप लोग भी वही देखो ना, जो सब टाइप का फोटोग्राफ कर लो, करते करते जिसमें आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट मिले तो उसमें आप ध्यान ज्यादा दो। फिर उसके बाद अपने अपना होम टाउन से अपने शुरू कर दो। इवन आप जो जगह में लोकेलिटी में रहते हो उसके आसपास से फोटोग्राफ करना शुरू, क्योंकि आप लोकेलिटी जा मैं तो वो बाहर वाले लोगों को आप दिखाओ जो कोई नहीं जानते। वहां पर आपने सोचो कि ये तो बहुत सारे लोग, या तो मैंने दूसरा क्या ले सकती हूँ, दूसरा एंगल। तो थोड़ा सोचना, थोड़ा धीर स्थिर होके थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो वही उसी हिसाब से थोड़ा टाइम देने से, थोड़ा पढ़ाई करने से, थोड़ा मास्टर्स का फोटो देखने से थोड़ा एक टाइप का आ जाता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी मम्मी बोलता है कि ये खाना खा लो अच्छा लगेगा, तो हम लोग नहीं, ये कड़वा है, ये नहीं, ये सब्जी मुझे नहीं खाना है, ऐसा करती हूँ। खाना खाने के बाद ट्राई करने के बाद लगता है ये तो उतना खराब तो नहीं है, ये तो अच्छा ही है। सेम चीज है, अगर आप दूसरे का फोटो देखने लगोगे ना तो देखते देखते क्या है, खुद का एक ऊपर आइडिया देखते हो देखते सकता है। आइडिया आ जाएगा, वो फोटोग्राफी का रीड करने का एक आइडिया आ जाएगा। Ma'am, your photograph made us travel the whole world. You know, that is true enough. But the problem is with the fact, ma'am, that it's a pandemic and we are stuck at home since the last 6 months. And we do not know that when can we start traveling again. और अगर traveling start भी कर दिए तो I do not know हम लोग कब वापस से, we can afford to, because of the whole situation, go abroad and start traveling the world. And also because of the fact that a lot of participants that we have, they are students or they are aspiring photographers, and it is quite the fact that when you're indulging in travel photography, it's also a luxury. At the end of the day, you have to save a lot of money, so you cannot kickstart travel photography on a global scale in the beginning of your career. So ma'am, if you could just give us a little bit of exposure to photography within the country, I think all the participants, they will find hope and they will find more relatable experience to your entire photography. So if you could just show us few of your works which is based in India, ma'am. एकदम एकदम देखा है। उसके पहले मैं जो बोलना चाहती हूँ, अभी जो पैंडेमिक है तो मैंने क्या किया, फर्स्ट जब आप जानते हो मैं इतना ट्रैवल करती हूँ, घर में बैठना मेरे लिए घुटन जैसा होता है। तो मैंने तो घर में जो मेरा जो लोग है, मतलब हमारा घर का जो मेंबर्स है वो लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो काम है वो बाहर, मतलब अभी भी इस टाइम में भी बाहर जाना, तो घर में मैं अकेला रह जाती हूँ। तो अभी तो मैं पूरा फुल टाइम शेफ हो गई हूँ, खाना बनाती हूँ, सिर्फ खाना ही बनाती हूँ। तो फोटोग्राफी क्या मैं भूल जाऊंगी? नहीं। तो मैंने फूड फोटोग्राफी स्टार्ट कर दिया। तो नए चीज जो पैंडेमिक में जो हम लोग पहले नहीं करते थे, तो दूसरा चीज ट्राई करना, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। जो इस टाइम में दूसरा, हम लोग बाहर नहीं जाए तो अपने खुद का जो घर है उसको जानो, घर का लोग जो है उनका फोटो खींचो, उनको पता नहीं चलना चाहिए, उसके ऊपर स्टोरी बनाओ। फूड फोटोग्राफी, टेबल टॉप, ऐसा कुछ करने शुरू कर दो। जैसे कि खुद के ऊपर, जैसे कि मैंने सेल्फी अपने ऊपर मैंने फोटोग्राफ स्टार्ट किया था, मैं उसका भी एक सीरीज बनाया, मैंने 2-3 तो शेयर किया, थोड़ा अलग देख के। तो टाइम तो सब नहीं मिलता, जैसे कि मैं होम मेकर भी हूँ तो मुझे टाइम उतना नहीं मिलता, कभी कभी रात 3 बजे तक मैं जागी रहती हूँ, उसके ऊपर काम भी करती हूँ। तो ऐसा आप लोग कर सकते हो इस टाइम में। और फिर उसके बाद मैं जो बोल रही हूँ कि ट्रैवल फोटोग्राफी में ये जरूरी नहीं है कि बहुत दूर तक ट्रैवल करो। पहले
क्योंकि पहले तो हम लोग के पास पैसा नहीं होता तो हम कैसे जाएंगे। तो ये जो सोशल मीडिया है इसको हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हाय हेलो ये क्या कर रहे हैं वो क्या, इसके मतलब फालतू टाइम वेस्ट करती हूँ बात करने के। लेकिन अच्छे दोस्त हो तो मैं क्या करूंगी, दिल्ली वाले जो दोस्त है उसको मैं ऑफर करूंगी कि आप कलकत्ता आ जाओ तो मैं आपको कलकत्ता घुमा दूंगी। तो वो आपको ऑफर करेंगे कि आप दिल्ली आ जाओ, तो मैं तो दोस्ती ऐसे बनाओ कि इंडिया के अंदर तो कभी कभी आप लोग रहने के लिए कुछ लोग होता है, उसका स्टूडेंट होता है जिसका पैसा नहीं है, तो आपका रूम शेयर करो उनके साथ कि आप आ जाओगे तो मेरे पास रह जाओ, पैसा नहीं लगेगा, तो वो भी आपको ऑफर करेगा गोवा जाओ मुंबई जाओ, तो वो भी कुछ ना कुछ मैनेज कर देंगे, तो पैसा कम पैसा से आप घूम ट्रेवल कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका जो अपने सिटी है वो आप अपने की कुछ है, लेकिन वो आप कुछ फॉरेनर दूसरा अलग, जैसे कि कलकत्ता जो स्ट्रीट फोटोग्राफी बस अलग होता है, तो आप खुद का सिटी का लेके बना लो, तो वो नहीं तो जो मैगजीन होता है फ्री मैगजीन उसको करो, पैसा के लिए पैसा कम मिलना है, लेकिन को देखना फेसबुक में डाल इंस्टाग्राम लो, बहुत सारे बच्चे इतना अच्छा है, तो हम लोग का वो वही देखता है कि बच्चे लोगों का जो काम देख के मैं कभी चौंक जाती हूँ, तो ये आप से करोगे अच्छा लगेगा, अच्छा कुछ फॉल मिलेंगे। तो मैं कुछ इंडिया का फोटो मैं दिखाती हूँ कि इंडिया इतना जरूर। Sure. Let us stop the video. Stop the video. Sure. Yes. एक मिनट मुझे 1 मिनट टाइम दे दीजिए। हाँ मैम। जरूर जरूर। देख सकते हो पिक्चर दिखाई दे रहा है? हाँ मैम। ये होली का पिक्चर्स है, विडो होली का। ये पिक्चर नेशनल जियोग्राफी का कवर भी, मतलब नेशनल जियोग्राफी जो योर शॉट का 3-4 बार कवर भी हुआ था। योर शॉट मैम अभी बंद हो गया है, बहुत खराब लगता है। हाँ अभी बंद हो गया, लेकिन इंस्टाग्राम में अभी चल रहा है, उसका हैशटैग आप यूज चल। तो मैं कुछ जो है इंडिया का कर रही हूँ, आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो वो बाद में कर सकते। ठीक है। हेलो। तो मैं सब्जेक्ट वैसे ही चूज, बहुत सारे क्राउड होता है फिर भी आपको मतलब दिखना चाहिए आसपास में क्या है। मैं ब्लाइंडली फोटो खींचूंगी तो ये आएंगे, कभी कभी कैमरा से बाहर आके आपको भी दिखना पड़ेगा व्यू फाइंडर से बाहर, कौन सा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, कौन किसका पिक्चर लोग नहीं ले रहा है, तो मुझे पिक्चर मिल। मैम ये लोग मतलब हैंडल कैसे करते हैं आप, अगर ये कोई सजेशन दे, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज्यादा क्राउड होता है। देखो वही आपको प्रैक्टिस करते करते तब भी आपको आप हैंडल कर पाओगे, अगर प्रैक्टिस आप नहीं, जैसा कि आप अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, पहले आप फर्स्ट डे जब आप आया थे तो आपको लगता था कि कुछ समझ, फर्स्ट लेक्चर से आपको कुछ समझ में नहीं आते थे, क्या सर बता रहा है कुछ भी, तो आप लोग जब उसके अंदर घुसते हो तो उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाता है। सेम थिंग फोटोग्राफी में भी आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, 2-3 बार फेलियर होंगे तो फेलियर से ही आपको समझ में आ जाएंगे तो कैसे करना चाहिए। मैम ये आपके साथ होता है कि अगर मतलब होली मथुरा में अगर आप 2 years 3 years कंटिन्यूअसली खींच रहे हो, कवर कर रहे हो, तो एक क्या बोर्डम
ऐसा कुछ लगता है कि एक ही प्लेस में एक ही फोटो हो रहा है? एक तो फोटोग्राफी तो मैं प्यार से करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये तो मेरा हाँ अंदर से। और मैं लोगों को पसंद करती हूँ। मथुरा का होली लेके लोग बहुत, बाहर का लोग, इंडिया का लोग बहुत बोलते हैं कि यहाँ का लोग अच्छा नहीं होता है, तो बहुत क्राउड होता है। मैं जाके मेरा तबीयत भी बहुत खराब होता है, लेकिन फिर भी हर टाइम मैं सोचती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं आना है। लेकिन जब हाँ पिक्चर देखती हूँ फिर सोचती हूँ नहीं, चलो फिर जाते हैं। ये तो एक बात है। दूसरा चीज, बहुत सारे लोग इंडिया का ये होली लेके, मतलब इंडियन ही है, ये हाँ लड़की को छेड़ते हैं, ये खराब है, बहुत नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं। लेकिन मेरा जो बात है, आप जब वहां पर जाते हो, ये सुन के जाते हो, ये समझ के हाँ जाते हो कहाँ पर आप जा रहे हो। अगर आप राइट फॉरेस्ट में जा रहे हो कि वहां पर शेर है, वहां पर लायन टाइगर जो भी है, तो आप तो खुले जीप से निकाल के तो नहीं घूमेगे ना। तो वो जो प्रोटेक्शन आप लोगे, तो फिर होली में वही है, आप जानते हो कि उनका लोग खराब है, तो आपने खुद को संभालो, लोग आपको बस नहीं करेंगे। तो मैं वहां पर 4-5 बार गई हूँ, फिर लोग इंसिडेंट्स मुझे हाँ ऐसा कुछ सजेशन है कि मतलब लोग 2 years 3 years कंटिन्यूसली जा रहे हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेम एवरी ईयर उनको मिले, ना कि मतलब एक ही जैसा चीज वो देख रहे हैं। ये आपके ऊपर, देखो ये तो डिपेंड करता है आपका इनर जो आर्टिस्टिक सेंस है इसके ऊपर। आप कैसे खींच, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, किस टाइप का चीज आप खींचना चाहते हो, किस लिए खींचना चाहते हो, किसके लिए खींचना। अगर आपका प्रोजेक्ट हो तो उसका डिफरेंट टाइप का बात है, अगर आप खुद का लिए खींचना चाहते हो उसको अलग है। तो ये पूरा आपका, आप क्यों जा रहे हो उसके ऊपर। जैसे कि ये वाला जो होली है, ये कलकत्ता में है, तो इसमें मैं थोड़ा तो इस टाइप का पिक्चर्स किसके पास नहीं। लास्ट लास्ट ईयर में मैं नहीं जा पाई, तो इस टाइम में भी बहुत खराब हो रहा था, होली का गुलाल था, तो मैंने क्या हुआ, बैठ गए। जिस बच्चे को देख के मैं थोड़ा लो एंगल, क्योंकि सारे गुलाल हो रहा था, मुझे लग रहा था वो हो सकता है अगर मैं खींच सकूं तो 2-3 वाला गया था मुझे ये वाला। ये सब कलकत्ता का है, तो आपको थोड़ा देखना है कि डिफरेंट जो फ्रेम हम देख रहे हैं दूसरे गूगल में सर्च करके, तो वो मुझे लेना है, ठीक है, लेकिन दूसरा इंटरेस्टिंग मैं क्या ले सकती हूँ। ये तो दिमाग आपको, क्योंकि ये आर्टिस्टिक सेंस है, ये अपना खुद का है। अगर कोई, जैसे कि हम बताते हैं ना, अगर आप डांस स्कूल में दाखिल हो, मम्मी पापा कभी कहते हैं कि डांस स्कूल में चले जाओ, कभी हम लोग खुद जाते हैं अपने पैशन से। तो जिसको मम्मी पापा भेजते हैं तो वो रोबोट जैसा डांस करते हैं, जो खुद का पैशन से जाते हैं तो वो अपने हिसाब से डांस करते हैं। सेम फोटोग्राफी भी है, आप टेक्निकल चीज सीख सकते हो, लेकिन जो आर्टिस्टिक सेंस है उसको आपको ग्रो करना है लोगों को फोटो देख के। तो उसमें अगर आप क्या बताओ, देखते रहोगे तो अपना खुद का सेंस आएगा। ना ऐसा क्या लगता है आपको कि एक्सपीरियंस भी ग्रो होता है, मतलब कोई अगर एकदम एक्सपीरियंस ग्रो होता है, इसके लिए फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कवर कर बहुत रहे हैं? जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो प्लेयर्स होता है, प्लेयर्स को जैसे कि एक दिन में मतलब मैच का चांस नहीं मिलता, सेम फोटोग्राफी में भी एक दिन में कुछ नहीं होता। एक तो फोटो आपका हो जाता है, कभी वो तो फ्लूक में हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी आपको वो चाहिए, प्रैक्टिस करने से आप एक बॉडी ऑफ वर्क बना सकते हो। जैसे कि ये सेरेंडिपिटी, ये मोमेंट, ये कैच करना, मैं जो चाहती हूँ अभी मैं कैमरा को देखती नहीं हूँ, मेरा हाथ, मैं जो चाहती हूँ मेरा हाथ वो करते हैं, क्योंकि मेरा कैमरा को साथ जो बॉन्डिंग मेरा ब्रेन से वो हो गया। स्ट्रीट फोटोग्राफी वही है, प्रैक्टिस करो। और जो स्ट्रीट फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी करना चाहते हो, अपने खुद को जो कैमरा है उसको अपने हाथ की तरह जान लो। आप रोज 10 मिनट करके टाइम दो कैमरा को देखने के लिए, तो वही मतलब काफी एक्सटेंशन होना चाहिए मतलब एकदम। कैमरा।
जैसे कि ये सब पिक्चर्स जो है बहुत ही कॉमन फेस्टिवल कलकत्ता से है, लेकिन पहले कोई नहीं खींचा था, मैंने खींचा, उसके बाद लोग चालू हो गई। हाँ लोग भी खींचते थे दूसरा टाइप का, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि ठीक है चलो थोड़ा डिफरेंट काइंड का क्या होता है, आसपास देखो क्या होता है, तो मैंने डिफरेंट टाइप का कुछ चालू कर दिया। ये जो फोटोग्राफ्स है वो तो बहुत आपने क्लोज से खींचा है, हाँ, ये कोई मैं क्लोज में सजेशन चले है जाती कि हूँ, मैं बहुत क्लोज जाती हूँ फोटोग्राफ्स के लिए। मतलब हम लोग जो है मतलब पहले बहुत डांटते हैं कि इतना हाँ, क्लोज नहीं जाना चाहिए, तो कोई सजेशन है कि इसके लिए इसके ऊपर कोई इसके लिए डेवलपमेंट भी हो सकता है? प्रैक्टिस, इसके लिए भी प्रैक्टिस, जैसा कि आप चाइल्ड लाइक जो क्यूरियोसिटी है ये रखो हाँ जब फोटोग्राफी करोगे, चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी, लेकिन हाँ एडल्ट जैसा एक्सपीरियंस चाहिए। तो एडल्ट जैसा एक्सपीरियंस के लेने के लिए क्या, एडल्ट तो आप एक दिन में नहीं हो गया ना, चाइल्ड से एडल्ट नहीं बनने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, जो टाइम, हाँ तो टाइम के साथ बुरा हो जाओगे तब तो फोटोग्राफी, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस, लेकिन आपको है वो चाइल्ड लाइक होना चाहिए। बच्चे हाँ लोग जैसे, तो उसका जो इनर विजन जो होता है बहुत क्रिएटिव नहीं है, कुछ नहीं है, नया कुछ करने का जो कोशिश बच्चे करते हैं, टाइप का विजन, टाइप का जो इच्छा है वो रखो मन में, और प्रैक्टिस करने से क्या है वो समझ में स्टैंड व्हेन शटर, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, तो किस करूं तो समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा डिफरेंट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, सब चीज, नॉट ओनली द बोलो, सब चीज वही। बोलो जो भी बोलो, देखो बहुत कॉमन, अगर हाँ हाँ मैम लेकिन दूसरा टाइप का ये जो मैं कुछ दोस्त के साथ पहले, मैंने कैमरा नया मिला था उसके, तो ऐसा ही वो मतलब जंप कर लिया था, तो तुरंत मेरा जो तो मैं तुरंत पहले वाला ये पिक्चर, ये बाद में भी अच्छा। मैम देखो अगर ये आपका तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखा, तो अगर आपको पूछता हूँ कि हम एक अच्छा फोटोग्राफ का डेफिनेशन आपके लिए क्या है, तो आप क्या बताओगे उसके ऊपर? ये तो क्या बताओ मुझे, अच्छा फोटोग्राफ जो आपको मतलब याद रखेगा, आपको मन में जो फीलिंग्स जो है उसको आप छू जाएंगे, आपको वो हाँ फोटोग्राफ जो आपको फिर भी कभी, जैसा कि आप मेरा फोटो आप आपको अच्छा लगेगा, जो फोटो आपका दिमाग में बहुत सारे दिन रहेगा, तो उसको आप हाँ अच्छे फोटोग्राफ बताएंगे। मेरे पास जो हूँ मैं क्वालिटी के लिए इतना मतलब ये नहीं करती, मुझे फ्रेमिंग कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान देती हूँ, उसके बाद हाँ क्वालिटी। तो अच्छे फोटो में तो कंटेंट होना चाहिए जो आपको याद रखेगा। मतलब गियर उतना मैटर नहीं करता, मतलब फोटोग्राफ अगर गियर अच्छा हो। देखो, जो आपके जेब में जितना पैसा है आप वैसा ही तो खाओगे ना, तो गियर राइट आपके पास जैसा है, फोटोग्राफी प्रैक्टिस वैसे करो आप पहले, तो उसके बाद ड्रीम तो होना ही चाहिए कि मैं इस जैसा फोटोग्राफ खींचूंगी, मुझे ये वाला गियर्स चाहिए, लेकिन आपके पास अगर हाँ उतने अच्छे गियर्स नहीं है जिसका आईएसओ आप ज्यादा कर सकोगे, तो आप दिन में ज्यादा से ज्यादा फोटो दिन में खींचो। जस्ट हाँ राइट हाँ, रात का फोटो खींचोगे तो स्लो शटर यूज करो, कि अपने कंटेंट आपका चीज खुद बनाओ, सोचो कि कैसे मैं डिफरेंट कर सकती हूँ, मेरा जो गियर है उसी से, उसी हिसाब से। बहुत राइट। सारे लड़का है जो बहुत मतलब एकदम नॉर्मल गियर से बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स खींचते हैं। देखो ये सब कलकत्ता का ही पिक्चर्स है, अभी हाँ तो बहुत सारे बच्चे खींचते हैं, मैं बहुत पहले खींचा था। यहाँ का इंडिया का जो कलर्स इतना वाइब्रेंट होता है, वो आप दिखाओ आपका काम से, वो भी लोग पसंद करते हैं बहुत सारे। हाँ कभी कला स्लो शटर, कभी डिफरेंट टाइप का टेक्निक आप यूज करो, जैसा कि टेक्निक ही सब नहीं होता है, लेकिन एक फोटोग्राफ में 30% टेक्निक इम्पोर्टेंट होता है।
ज्यादा से ज्यादा जो आपका एस्थेटिक, आपका जो वो मुझे ज्यादा, मतलब आपका जो रुचि है वो आपका ही है। हाँ तो आपको एस्थेटिक्स बनाना पड़ेगा। देखो सब इंडिया का पिक्चर्स है, आपको ढूंढना पड़ेगा नया चीज कुछ। राइट। आप लोगों से बात करोगे, दोस्त बनाओगे, तो उसको भी पूछ सकते हो वहां पर क्या होता है। हाँ जैसा कि ये एलजीबीटी कम्युनिटी जो है उनको कभी वोटर राइट नहीं था, ये जो है ये वोटर राइट दिलाया उसको। कुंभ में इसको मुझे मिल गया था, तो इसका फोटो खींचे हाँ थे। बहुत प्रॉब्लम भी होता है फोटो खींचना, लेकिन फिर भी मैम यहाँ पर जो लग रहा है कि मतलब एडिटिंग जैसे आपने किया एकदम नेचुरली रखा आपने। मैं प्रोसेसिंग जो है, हाँ देखो एडिटिंग एंड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग में थोड़ा तो डिफरेंस है। जो सॉरी। प्रोसेसिंग मैं करती हूँ उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट टाइम देती हूँ। मैं जब जब भी जो भी करती हूँ कैमरा से ही करना चाहती हूँ। आजकल जो भी डिजिटल कैमरा है, मैं तो देख ही सकती हूँ एक बार फोटो लेके एक्सपोजर क्या है। ये तो फिल्म वाला कैमरा नहीं है, तो नहीं उसका मजा तो हम लोगों को लेना चाहिए। वो हम लोग का टाइम भी सेव करता है। एक बार आप एक्सपोजर समझ लो, फिर उसके बाद अपना क्रिएटिविटी में ध्यान दो। मतलब आप नेचुरली पसंद करते हो एकदम नेचुरल फोटोग्राफर, पसंद करते। तो देखो नेचुरल इस कलर्स। पिक्चर में, इस पिक्चर्स में मेरा कैमरा का ऊपर पानी भी आ गया था। बीच वाला जो बंदा है उसका मुंह का सामने देखो हिरजी है, मैं वैसा ही हाँ रखा, क्योंकि मैंने साइड में भी थोड़ा पानी का आ गया तो मैंने वैसा ही रखा। वही नेचुरल है, मुझे नेचुरल चीज ही दिखाना है। बहुत सारे लोग जैसा कि सामने वाला एक पत्ता आ गया सामने, उसको वैनिश कर देते, मैं नहीं करती हूँ। मैं गंदा होता है मैं वही रखती हूँ। वो मेरा विचार है कि मैं जो खींचती हूँ मैं वही वही दिखाना चाहती हूँ। मैं लोगों को ये फील देना चाहती हूँ कि वो मतलब ऐसे ही दिखता है, मतलब ऐसे ही होता है, मतलब कुछ क्या बोलूं, कुछ मतलब सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, इम्परफेक्ट भी होता है, ऐसा एकदम है। सही, एकदम सच। देखो ये कलकत्ता का पिक्चर्स है, सेम आप लोग हाँ कितने बार जाते हो। मेरा एक वर्कशॉप में बच्चे के साथ मैंने खींचा था ये वाला पिक्चर्स। बहुत ही नॉर्मल चीज हम लोग रोज देखते हैं ये सब। थोड़ा आपको ट्विस्ट करना है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ही आप कर सकते हो। जो 10 पिक्चर्स में एक अच्छा लगेगा आपको। मतलब एक साल अगर हम लोग प्रैक्टिस किया तो दूसरे ये साल में डिपेंड शायद करता कुछ। है, किसी को 30 साल प्रैक्टिस करने से भी नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके। हाँ, क्योंकि देखो ये आर्ट है। हाँ आपका जो आर्टिस्टिक सेंस है, ये इसके ऊपर तो कोई नहीं बोल सकता ना। नहीं, मतलब प्रैक्टिस करते करते हमको जो अननोटिस चीज है वो नोटिस होगा। एकदम एकदम एकदम। थैंक यू मैम। मैम छुट्टी, थैंक यू मेरा छुट्टी हो फॉर, गया ना? नहीं छुट्टी। मैम, इतना 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 जल्दी तो जाने नहीं दे सकते मैम आपको। Ma'am, I think since we started off emphasizing on the fact that you are a traveler before a photographer, I think it is best to conclude about you sharing your experience as a traveler, if not a photographer. You know, ma'am, कि आप जो travel कर रहे हैं, unfortunately, ये भी पूछना पड़ेगा that you know, as a woman, how is the experience? Although it's very unnecessary, but it's also very relevant that when you're traveling solo as a woman traveler, your experiences, ma'am, as a traveler, your experience. देखो मैं तो बचपन से ट्रैवल मतलब जब छोटे थे हम लोग बंगाली है, तो बंगाली लोगों को मतलब चिड़ा मुड़ी लेके भी ट्रैवल करते, पैसा हो और ना हो। तो हम लोग का
जैसा कि स्कूल में छुट्टी रहता है, पूजा का छुट्टी, समर वेकेशन, हम लोग बाहर जाते, कुछ ना हो पुरी चलो, कुछ ना हो दीघा चलो, नहीं तो दार्जिलिंग चलो। दीघा, हाँ दीघा पुरी चलो। दार्जिलिंग। हाँ, तो हम लोगों का जो स्टोरी बचपन में पढ़ते उसके हिसाब से मम्मी पापा का हिसाब, देखो वो कंचनजंगा है, वो देखो छोटा टॉय ट्रेन है, तो हम लोग इसी हिसाब से, हम लोग को जो परवरिश है इसी हिसाब से हम लोग का अंदर कुछ चेंज भी होते हैं, ट्रैवलिंग का रह जाते हैं। ट्रैवलिंग का, और नहीं तो जिसका मम्मी पापा ऐसा गाइड नहीं करते, जैसे कि हम लोग का, मेरी पिक्चर देख के कुछ बच्चे भी इंस्पायर हो जाते हैं, तो ऐसे हम लोग इंस्पायर होते हैं फोटोग्राफी। तो उसके बाद अभी जो आप लोग देखते हो कि मैं बहुत सारे बाहर में ट्रैवल करती हूँ, इंडिया के बाहर, क्योंकि मैं बहुत लेट शुरू किया फोटोग्राफी। उससे पहले हम लोग को मतलब एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने बहुत पहले शादी किया था, मेरा उम्र था 24 इज ओके, लेकिन मेरा हस्बैंड का उम्र भी 24 था उस टाइम, क्योंकि उन्होंने बोला जल्दी शादी कर लो तो हम लोग को घर ट्रैवल करने देगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा, अभी काम करो। तो मैंने चलो ठीक है, तो हम लोग उस टाइम ट्रैवल करते थे। शादी किया उस टाइम, वो बॉर्डर में कश्मीर में वो जंग चल रहा, कोई भी कश्मीर जाने के लिए सोचते थे, हम लोग घर में चले, टाइम जो बस उठ के आलू के बस्ते लेके जाते हैं, जो व्हीकल, उसके अंदर घुस के प्लीज भैया हमको छोड़ दो, बस में जाते थे। उस टाइम हमने ट्रैवल किया। अब वो वाला चीज दिन ज्यादा याद होते हैं, लोग इतने अच्छे थे। आप जानते हो रात 3 बजे जैसा कि लोकल बस खड़ा, लोकल लोग चले गए, पहाड़ी के ऊपर था, हम लोग क्या करेंगे, पंजाब से कोई लॉरी आ रहा था, वो एप्पल लेके, मनाली के आसपास कुछ ताबू बोल के एक जगह था हिमाचल में, उधर जाना था। तो मैंने बोला कि भैया मुझे, हम लोगों को लेके चलो, मैं मेरा हस्बैंड था उस टाइम, हम लोग तो जैसे कि बोला 24 इयर्स का था उस टाइम, नेट भी नहीं था, मोबाइल फोन भी नहीं था, तो लोग इतने अच्छे, अगर आप उसको रेस्पेक्ट करो तो वो भी आपको रेस्पेक्ट करेंगे, लोग इतना अच्छा था। तो वो रात को 2-2:30 बजे हम लोगों को लेके फिर वहां पर पहुंचा दिया, इतना अच्छे। विश्वास भी करना चाहिए, सब लोग इतना खराब भी नहीं होते, रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी होता है। मैं इतना दिन से ट्रैवल कर रही हूँ, इतना खराब मतलब अभी तक टचवुड नहीं मिला मुझे, तो ट्रैवल करती हूँ। और जो मैं घर से भी कभी कभी मुझे बताते थे कि मैं आप ट्रैवल निकले, जैसे कि नॉर्वे -30 डिग्री, जैसा कि लद्दाख, जैसा चंपा, उधर भी मैं चले गई थी, वो -40 डिग्री भी मिला था। तो इसके लिए आपको तो पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो भी सिचुएशन है, एक फिजिकली फिट होना चाहिए। मैं जो नहीं हूँ, अभी ट्राई कर रही हूँ, जो मैं सब बच्चा को बताऊंगी कि फोटोग्राफी करना है, जो भी है लाइफ एंजॉय करना है, जैसे कि हम लोग रोज ब्रश करते हैं, उसी हिसाब से आप लोग वेस्टर्न कंट्री में लोग को देखो, आधा घंटा दो अपने खुद नहीं दे, तो जैसा जरूर कर, तो बहुत जरूरी होता है उसमें, करो कुछ भी प्रॉब्लम। और दूसरा चीज, आप लोगों को जो जगह में आप जा रहे हो उसका जो पहले से उसका जो देख के जाना पड़ेगा, उस जगह का गूगल करो, उस जगह का बारे में जानो, लोग कैसे होता है, वेदर का प्रॉब्लम, वो रिसर्च आपको करना चाहिए जहां भी जाओ। फिर वो जगह गंदा है, लेकिन फिर आपको ट्रैवल करना है, फिर कोई असाइनमेंट है तो लोकल फ्रेंड बनाओ, कि अगर देखो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, अगर कुछ लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं आपको फोन करूँ, तो उसका फोन नंबर रखो, ऐसा करके आप लोग करो। फिर जैसा कि कुछ जगह में सब जगह खराब नहीं होता, जैसा कि न्यूयॉर्क अगर मैं गई तो न्यूयॉर्क में कुछ जगह होता है बहुत खराब, तो उस जगह को रात को अवॉइड करो। आप अगर आप एकला ट्रैवलर हो तो, जैसा कि लास्ट ईयर मैंने एकला गई थी, उस जगह रात में डर भी लग रहा था, तो मैंने थोड़ा मोबाइल ऑन करके रखा था, फ्रेंड से बात कर रहा था, ऐसा कुछ बहुत सारे चीज होता है अभी। जैसे कि आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है, मतलब जहाँ पर भी अभी आप तक ट्रैवल किए हो?
मैं मेरा फेवरेट बहुत सारे प्लेस है, लेकिन मैं जैसे कि पीपल फोटोग्राफी, लोगों से मिलना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इसलिए इस्तांबुल, क्यूबा, न्यूयॉर्क, बाहर का हो, और सबसे ज्यादा इंडिया, कलकत्ता। Acha, ma'am, basically, you know, we cannot wrap up the session like this because people keep on having a lot of queries. But since we are short on time, ma'am, if you could please share with us a contact detail, any of the contact detail which you're comfortable sharing with us, so that, you know, if people have any queries beyond this session, because like we always say, ma'am, ki पूरा फोटोग्राफी का पैशन तो ये 1 घंटे में खत्म नहीं हो सकता मैम, इट विल कंटिन्यू बियॉन्ड दिस। उन लोग सोचेंगे पिक्चर को देख के, फोमो आएगा और बुरा लगेगा, फिर लोग फोटोग्राफी का प्लान करेंगे, ट्रैवलिंग का प्लान करेंगे और आपको याद करेंगे मैम। तो मैम, एनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु हैव अटेंडेड द वेबिनार टुडे मैम। इंस्टाग्राम, फेसबुक आप लोग कर सकते हो। इंस्टाग्राम में दिखाई देता है क्या? नहीं मैम, आप बोल दीजिए थोड़ा सा हैंडल। नेम लोपामुद्रा है, लोपामुद्रा। लेकिन लोपामुद्रा तो बहुत सारे हो गए। लोपामुद्रा इसे आप कैसे मैं दिखाऊंगी, इसको नहीं आ रहा है ना? नहीं मैम, ओनली लोपामुद्रा है मैम आपका इंस्टाग्राम हैंडल। लोपामुद्रा है, ओनली लोपामुद्रा। आप डीपी का क्लू दे दीजिए, आपका डीपी क्या है, तब लोग समझ जाएंगे। जैसा फेसबुक का डीपी है, मुंह में थोड़ा मास्क, बस बी सेफ वाला डीपी है। सो दिस टाइप का डीपी ये फेसबुक का है। हाँ, सेम इंस्टाग्राम में। मैं इंस्टाग्राम में ज्यादा टाइम देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों से मिलना, तो इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो कर सकते हो। फेसबुक में भी फ्रेंड रिक्वेस्ट मैं ले नहीं सकती क्योंकि बहुत सारे 10,000 के ऊपर फॉलोअर है। फॉलो करो, क्योंकि ये नहीं है कि मेरा सब पिक्चर्स तो ओपन ही रहता है। मैसेज करो मुझे कि मेरा तरफ से हेल्प होगा तो मैं कर सकती। I think someone has been so kind enough कि उसने already मैम का लिंक शेयर कर दिया है चैट बॉक्स पे। So we already have a lot of genuine loyal fans here. तो उन लोग ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है चैट बॉक्स पे। सो ऑल द पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज, प्लीज फील फ्री टू DM ma'am or ask ma'am on Instagram. Ma'am is herself claiming the fact that she is quite active on Instagram, so you guys know exactly where to follow her and where to be in touch with her. But before we wrap up today's session, since it's unfortunately the last day of the 3-day affair that we had, we would also like to take a few minutes to bring on screen the people who have made this session possible. So we already have ma'am with us, we already have Dipro who is a moderator, but we would also like to welcome Firoz Mohammed sir, we have Suman sir, and we also have Sanit who was a moderator in one of our sessions. So if you could please switch on your video camera and unmute yourself. Sanit, are you there? Firoz sir, could you please unmute yourself? Yes. Yes. Perfect. Yes, sir. Am I visible? Hello. Yes. All of you are visible. All of you are audible. Welcome to the 3rd day, and unfortunately the last day as well. Before we wrap up today's session, I would like to request Firoz sir and Suman sir to give a vote of thanks to our esteemed speakers, to the moderators, and as well as the participants. Nothing can happen beyond the speakers and the participants. So your vote of thanks, sir. Good evening, everybody. And I would begin with Lopa, and I would say one thing: no place can be boring. If you have a good night's sleep and have a camera full of good photos, good pictures. I mean, thank you very much for being here. On behalf of NSHM Knowledge Campus, Calcutta and Durgapur, and NSHM School of Media and Communication, and also on behalf of my students of visual storytelling, White Click and Shutter Club, I take
immense pleasure in thanking all the esteemed speakers for coming to our photography festival and making it one of the most memorable moments, and especially during this lockdown. Pandemic period. Yes. I would like to thank Paramita Chatterjee. She was here on the first day, and her presentation on documentary photographing, I mean, at least I will take few years to forget, and it will always remain with me, especially her project called Healing. Second day, on the same day, we have Avismita Bhattacharya, and her webinar was on shades of wedding photography. It was truly a roller coaster, and as if I was watching Hum Aapke Hain Kaun. It was amazing. Shomya Shankar Ghoshal, my special thanks from core of my heart and on behalf of my School of Media and Communication. His presentation and his interaction on visual storytelling was truly very informative and insightful. And then Mr. Vivek Das, his presentation, his webinar on advertising photography. And immediately after the webinar, I was talking to Professor Suman. I said, Professor Suman, it was not a webinar. It was a masterclass. So truly thankful to Vivek Da. He's a living legend, and we are truly blessed that he was there and he was part of this photography festival. Lopa Mudra Talukdar, as I said, no place is boring when you are there. I mean, that we saw. You made every place so interesting, so engaging, so intriguing. And as you said, there cannot be any city more beautiful than Calcutta. Think somebody from a Western country comes to this city and ends up writing a book called The City of Joy. So truly, so your photographs were truly very powerful, very engaging, and the tips which you have given, practice. I mean, while you were doing your presentation, in the midst of your presentation, you said so much. Truly very informative, truly another masterclass. I would also like to thank Professor Suman, the architect. Thank you, sir. Thank you so much, sir. You make everything so special. And we are so proud to have you with us. And I don't have to say anything, our students. So truly the architect of this particular webinar, Professor Pradipto Ghosh, Professor Somali Chaudhary, and Anisha Ray. You have seen her. Truly. Thank you very much, Anisha. Thank you very much, Professor Somali. Thank you, Professor Pradipto. And the architect of this 3 days of photography festival, Professor Suman Bandyopadhyay. Thank you so much. On behalf of NSHM School of Media and Communication, and also as a director of School of Media and Communication and director of NSHM College of Management and Technology. Thank you very much. I think, yes, sir. This particular event, what you saw last 3 days, I said there was a team behind it, and let me thank Dipro, Sanid, Neil, Soham, Barnali, and Somajit. They're the core team, and there were many other students who were part of this particular webinar. I will not take much time, but I would like to say just one thing. I would say basically 2 things. One is, photography is the story that we fail to put into words. I mean, you just witnessed Lopa Mudra's presentation. So
So photography is the story that we fail to put into words. Last, before I sign off and before I request others to speak, one more. There is one thing a photograph must contain. You know what is that? The humanity of the moment. Have a very nice and pleasant evening ahead. Stay well, stay healthy, stay hearty, and keep smiling. Thank you very much. Thank you. Thank you so Thank you, much, sir. sir. Thank you Thank you, for the sir. kind words. And, as sir rightly put, we cannot wrap up the event before having a vote of thanks from the architect of the entire event himself. So we have with us Suman sir, who is truly the architect behind the whole event. So sir, if you could share with us a few words about, coming up with this whole event and your experience about this whole event, that would be a pleasure to hear, sir. Thank you so much, Anisha. Uh, Actually, it was a 3 days event, and we had a wonderful 5 webinars. So right now, I'm having a feeling that it was a 5 days Durga Puja, and today is the Dashami. I'm having the feeling that today is the Dashami. So first of all, I would like to thank all the esteemed speakers, including Lopa ma'am. Special thanks to all the participants and the entire faculty team. Special thanks to Pradipta sir and Shomali ma'am. And we are having a very good photography club in NSHM, which is known as Club YClick. Special thanks to all YClick members, Club YClick members, and all the members of the branding departments of NSHM, ITS department of NSHM, top managements. I would like to thank you all. And special thanks to our wonderful anchor, Anisha. Thank you. And especially Firoz sir has already mentioned that there is a core team who has wonderfully worked for this project. Like Niladri has done wonderful, mind-blowing videos for the speakers. Shoham has designed wonderful posters. Barnali has done a lot of things on the feedback formats. Nandini done a wonderful PowerPoint presentations on the legendary photographers. Shorodip also there. So it's a question to Anisha ma'am. Can we invite all these core committee members Yes, because so we cannot wrap up here before bringing the ones who are behind the entire project. Exactly. It is very unjust to leave the movie theater without giving credit to the people who are behind the movie and not just the artists and the heroines. So I think we need to take a few minutes to bring them on screen. We have with us Shorodip Dalal, Soham Sen, Barnali Adhikari, Nandini Majumdar, Niladri Pal, and Sanid Roy Chaudhary is already here. And these are the people behind the curation of this whole event. But before we bring them on screen, I would like to, again extend a hearty thanks to Lopamudra ma'am for being here today and for being a part of this webinar. You truly made this day truly special, and we wouldn't have asked for a better person to conclude this webinar series. And of course, to Firoz sir, who, always tries to support all of these events. And I think, sir, with your support, the curation of such events is possible. Of course, as sir also said, Suman sir also said, nothing would have been possible behind the scene. Pradipta sir is there, who is right now watching us, and he's a beloved professor here. So thanks to him, and also thanks to another mastermind who is behind this whole event. Somali ma'am is also there, and they're the ones who are quietly seeing everything from behind the curtains and making sure everything goes well on stage. So thank you, sir. Thank you, ma'am.
It is because of people like you, and it is because of support that we get from people like you that these events can be curated so well. Thank you, all of you. Especially thanks to Deepro and Sanit for being such amazing moderators, and also to Suman sir. It is for, you know, your moderation that makes the entire interaction more lively and more relatable for the participants. Thank you so much. And now, without further delay, let us please have our core team members on screen. Bernal has already joined. Yes, can we have Shorodeep, Soham, Nandini, Niladri as well? Barnali, can you please unmute yourself and show us your pretty face, please? Nandini is here. We have Nandini as well. Yes, yes. Hello, Nandini. How are you? Hello. I'm good. I'm good. How are you? I'm doing fine, and seeing you makes me feel even more better. Barnali, Nivedita has also joined. Could you please unmute and show us your face? The participants want to see you. And you're the stars as well for tonight. So we would really, really love to see you. We have Firoz sir back with us. He left us for a short while, but Firoz sir, can you hear us? Yes, yes. No, I didn't leave. This is again, network disruption. Yeah, I'm Okay. here. I'm here. Please start. Yeah. Okay, Niladri, please show us your face. You cannot hide your face when you are the star. Yes, yes, perfect. That's the smile the participants were waiting to see. Hello, Barnali, finally. Hi, ma'am. Hello, how are you? Fine. Okay, so we have almost all of the core team members here, and nothing could have been possible without you guys. So a humble gratitude and lots of love and gratitude for curating this whole event and for making this event come alive. Without you guys, not even the first step of this event would have been Yes. possible. True. You have given birth to this event, you have carried forward this event, and you're the one who will take this event forward in the coming years and make it a legacy of its own. So thank you, all of you who are here right now. We truly are grateful to all of you, and I think the participants would agree, because all of the people who have joined and become a part of this event are photography enthusiasts or are photographers themselves. And an event like this is truly a blessing in disguise amongst this entire quarantine situation. So thank you so much for coming up with this idea and for curating this event. And unfortunately, we're not able to see Pradipta sir and Somali ma'am, but as I said, Pradipta sir is they are here. behind Pradipta the sir, curtain. please show your Yes, beautiful sir. face. Could you please show us your face? Yes. Yeah. I'm here. Thank you, sir. But a very and thank you to special, Somali ma'am. but a very special thanks for Firoz sir. Without For his what? Yes, without your active support, we can't Yes. do anything. very And- true, sir. Unless and until you allow and you support Yes, these yes, kind of yes. events, these events cannot be possible. In my So- in my vote of thanks, I forgot to mention Sharadeep and Nandini. I'm so very sorry. That's How okay, could I sir. We are in forget your these heart. two Okay, stars? sir. Thank you. truly said, Thank you truly very there much. in Thank our you very heart. much. Yeah. Truly there in our heart, and truly there in our prayers, and truly Yes. there when we are, displaying our gratitude. You guys are the stars of tonight. So thank you. And we wrap up this event, but we are hoping we come up with something bigger and better even sooner than ever. And we get to have a live session soon. And beyond this pandemic lies a world where we get to interact and have this kind of interaction live. Until then, please do take care, stay safe, stay happy, and stay positive. And please do hope that this too shall pass very soon and we get to come back together as a team. Thank you once again to everyone, to our esteemed speakers,
to all the curators, to all the core team members, to Shuman sir, to Firoz Did we- sir, to Somali did we- ma'am, and did- to Pradipta sir. Did we click the picture of this particular frame? Oh, did someone take the screenshot? Yes, I have yes, taken the this time I screenshot. took it. I took. Okay. Yeah, that yeah. work has been done then. Yes, thank you. Thank you. Okay, We'll upload it in thank you. Facebook. Yeah, good night. Good night. Stay Okay, safe, yeah. okay. Good night, good Chalo. night. Bye. Bye-bye. Good Bye night. bye. Bye, ma'am. Bye. All the best.